जैन मेरे गए थे कल लगे हुए, तो कल रिसिप भी दे। मुझे अगर एक आधा ऑर्डर प्रोनाउंस करना पड़ जाए तो वहीं कर देंगे वो, ठीक है? the panelist is concerned, I would request please from your side. Ash, you take over. Everyone is waiting. I think let us start now. Let us start, please. Akash. Okay, sir. Okay, sir. Uh, Good afternoon, everyone. Dr. Saab, are you there? I would request the host kindly mute all the participants, please. We are still listening. Yeah. Good afternoon, everyone. On behalf of Learned District and Sessions Judge Headquarters, Shri Girish Katpalia ji, and Learned District and Sessions Judge, Miss Shri Dharmesh Sharma ji. Welcome Professor Dr. Tanuja Manoj Nisari, Director, All India Institute of Ayurved, Ministry of Ayush, Government of India, preside over on today's topic of discussion, which is coronavirus pandemic. Since 21st March, all of us are the courts after the courts have been locked. All of us are trying to find ways and means to work from home, and there are so many challenges day in and day out which all of us are facing. There is so much information coming in from every nook and corner, maybe be it newspaper, electronic media, print media, as well as WhatsApp, of course. But all of us, despite knowing so many things, may not be knowing everything, and there is still lack of clarity on various aspects. So we have a person, a very reliable, a very experienced person amongst us, Professor Dr. Tanuja Manoj Nisari, to speak on this topic, to dispel various doubts, to clear various things on this issue. And I hope this discussion is going to be really very fruitful for all of us being judges, because as and when the courts are going to open, we'll be interacting and we'll be open to so many stakeholders coming in straight away, be it litigants, be it lawyers. So we have to make sure to protect ourselves as well as our families besides working efficiently. So I hope to learn to learn various things from this discussion, and request ma'am to kindly take over. Please, ma'am, over to you. Before starting with this session, I would like Learned District and Session Judge Headquarters to kindly say a few words. Over to you, sir, please. Thank you, Akash. Respected Professor Dr. Tanuja ji, my fellow district judge Dharmesh ji, other fellow district judges, respected panelists, dear education officers, friends, ladies and gentlemen. Somewhere in the month of December 2019, first I realized that the so-called science, the conservative view of science does not even know what it does not know. Science does not even know what it does not know. Till December 19, nobody had even heard of this kind of a disease which would come, which would totally paralyze all of us, paralyze economies of the countries across the globe, make us through so much of turbulence. And now we are facing the situation. So there are certain very
critical things on a very, if we look at it at a macro level, I find certain very strange things in this disease. More than the medical issue, it is nowadays a issue of social stigma. Having passed through this phase where my wife was detected positive, for 15 days, the kind of social stigma we went through in our isolation and quarantine, that was really painful. So that's one aspect of it. Then we have another aspect which would be relevant to today's discussion. In today's discussion is the Ayurvedic medicines or supplements or whatever you may call it. There we will be enlightened by a very learned person. But I welcome Professor Dr. Tanuja for having agreed to enlighten us on these aspects. Doctor, before I request you to take over, I wish to make one small submission to you and through you to the concerned quarters and authorities. Why do we call the Ayurveda an alternate medicine? Just because during some period, some Westerners came here and they propounded this discipline of allopathy. We started calling Ayurveda, Unani, homeopathy, which were very well entrenched fields of medicine. We have started calling them alternate medicine. I have some difficulty. If you could ponder it over, instead of calling it alternate medicine, why can't we simply call it Ayurveda medicine or Unani medicine or homeopathic medicine or allopathic medicine? These are some of the issues which are hitting me on a macro level. At micro level, people are curious to know how useful this kadha is, because we also came to know that some of our friends who took this kadha, they were subsequently told that it led to thickening of their blood, which caused other problems. So all those are the doubts. We are totally layperson. We do not know anything. So you would enlighten us. So I would request Dr. Professor Tanuja ji to please take over. Namaskar. Am I audible, sir? Sure, please go ahead. Okay. Thank you for at the outset. This Delhi District Court 30 हजारी कोर्ट के से आपने ये जो वेबिनार आयोजित किया है, इसके लिए मैं श्री गिरीश कटपरिया जी, आपने बहुत अच्छा आयुर्वेद के बारे में भी बड़े अच्छे उद्गार कहे, और मुझे यकीन है कि जैसे कि लॉ का, जस्टिस का ये ब्रीद वाक्य है, यतो धर्मस्तको जयः, हमें लगता है कि आयुर्वेद इसी धरती का ही एक इंडिजिनस सिस्टम ऑफ इंडिया जो है, उसी से ही हम ये कोरोना का जय, धर्म का जय, कोरोना का जय कर लेंगे. एंड आई एम रियली थैंकफुल फॉर considering Ayurved, and it is not an alternative medicine, as Ministry of Ayush says that it is a future mainstream medicine of India and across the globe. So thank you very much, and I take this opportunity. मैं एक अपॉर्चुनिटी लेती हूँ कि आयुर्वेद से हम कैसे कोरोना से बच सकते हैं, और कोरोना हो भी गया तो कोरोना के साथ और कोरोना के बाद भी हम आयुर्वेद से हम कैसे हमारी जीवन पद्धति को स्वस्थ, सुरक्षित और संतुलित रख सकते हैं. हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ, द वे ऑफ हेल्दी लिविंग, ये कैसे कर सकते हैं. तो इसके लिए कल आज सुबह मेरी आज जो मौजूद है श्री धर्मेंद्र प्रधान शर्मा जी भी, उनका भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने हमें ये यहाँ आने का मौका दिया. और आकाश जैन और यहाँ शेफाली टंडन भी है, और जैसे कि जस्टिस, लिबर्टी एंड सोशल ऑर्डर, ये 3
सभी दुनिया को, आम आदमी को देने के लिए जो न्याय देवता है उसके साक्षीदार 200 से भी ज्यादा लोग अभी मौजूद हैं। इन सबको मेरा प्रणाम। और आयुर्वेद से हम कैसे बच सकते हैं कोरोना से, कैसे हमारे अंदर का डर हम कम कर सकते हैं, इसके लिए हमने आपके लिए खास मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाया है जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के टर्शरी केयर हॉस्पिटल है, जिसको हम एम्स फॉर आयुर्वेद कहता है। और मुझे बहुत गर्वान्वित मैं महसूस करती हूँ, आज ही हमारे यहाँ आयुर्वेद से ट्रीटमेंट लेने के लिए पहला एक पेशेंट कोविड वार्ड जो हमने कहा वहाँ एडमिट हो गया स्टैंड अलोन आयुर्वेद की ट्रीटमेंट लेने से। और 80,000 पुलिस कर्मियों को हम पिछले 2 महीने से कोरोना से जंग दिल्ली पुलिस के संग ऐसा आयु रक्षा प्रोजेक्ट से हम एक प्रोफिलैक्सिस स्टडी कर रहे हैं। और मिनिस्ट्री के अंतर्गत जहाँ कर्फ्यू था, जहाँ इंटायर वर्ल्ड वाज अंडर लॉकडाउन, सो वी आर द वन, हम एक दिन भी घर में रुके नहीं हैं। 24/7 entire our staff is on our toe and we are working as a frontline warrior। मुझे खुशी है। और सेम जो कोर्ट है 30 हजारी, चाहे पूरे दुनिया का जो न्याय देवता है, तो वो भी अभी कोरोना के लिए एक जस्टिस देने का काम कर रही है। उन सबको भी मैं वंदन करती हूँ और मेरा प्रेजेंटेशन मैं शेयर कर रही हूँ। Yes. ये स्क्रीन दिख रहा है आपको? ठीक है। अभी नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा है, प्रेजेंटेशन दिख रहा है। प्रेजेंटेशन नहीं दिख रहा जी। Can you just see the presentation? सॉरी जी, नहीं दिखाई दे रहा। नो मैम, अभी नहीं दिख रहा। हाँ, अभी दिखाई दे रहा है। हाँ, अब शुरू हुआ है, आ जाएगा जी, आ जाएगा। हाँ हाँ, यस। कैन यू फर्स्ट स्लाइड दिख रही है आपको स्क्रीन पे? तो ये वेबिनार जो आयोजित किया है कि कोरोना एंड आयुर्वेद से हम कैसे बच सकते हैं, इसके लिए मैं आई जस्ट वुड लाइक टू टेक यू टू ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, विच इज एन अपेक्स इंस्टीट्यूट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। और उनके साथ NABH एक्रेडिटेड हॉस्पिटल है। और हमने अभी हाल ही में कोरोना में क्या किया, तो कोरोना में हमने लार्जेस्ट कोहोर्ट स्टडी जो दिल्ली के 80,000 पुलिस को हम आयु रक्षा एक प्रिवेंटिव इंटरवेंशन दे रही है। और कल ही हमारा एक प्रिलिमिनरी फीडबैक हमने लिया था दिल्ली पुलिस स्पेशल कमिश्नर और कमिश्नर के साथ। सो इन ऑलमोस्ट 15 डिस्ट्रिक्ट में हमें एक पॉजिटिव फीडबैक मिला। और जैसे गिरीश जी ने अभी, कटवालिया जी ने हमें कहा कि उनके यहाँ कोरोना पॉजिटिव केसेस थे, तो कुछ DCP उनको भी पॉजिटिव केसेस थे, लेकिन उन्होंने जब आयु रक्षा जो हमारे प्रिवेंटिव किट लिया गिलोय आंवला के साथ, सो दे रियली कुड फाइंड इट बेटर रिजल्ट्स आए और वो जल्द ही निगेटिव होके, असिम्टोमेटिक होके निगेटिव हो गए। तो ये एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट कोरोना कोविड पैंडेमिक में एक बहुत ही प्रोएक्टिवली प्रोफिलैक्सिस का काम कर रहा है, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये आयुर्वेद कहता है। तो वी आर ट्राइंग टू डू द प्रिवेंशन एंड प्रोफिलैक्सिस। जो कोरोना पॉजिटिव हो गए और हो भी गए तो वो असिम्टोमेटिक कैसे रहे, असिम्टोमेटिक अगर माइल्ड सिम्टम भी आ गए तो वो आगे ना जाके मॉडरेट ना हो, सीवियर ना हो जाए, और वो जल्दी ही 14 दिन नहीं, कुछ हमारे ऐसे कुछ काढ़े ऐसे हैं कि वो 7 दिन में ही वो निगेटिव, उनके PCR टेस्ट निगेटिव आ गए हैं। तो ये भी हम कर रहे हैं। सो बिफोर ट्रीटमेंट, बिफोर कोरोना एज अ प्रिवेंटिव ज्यादा काम कर रहे हैं, इम्यूनिटी के लिए हम ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि सब लोगों में डर है, क्योंकि ये डर है कि हम टीवी के आंकड़े रोज देखते हैं
अगर मैं आज का ही आंकड़ा देखूं इंडिया का, तो 3,81,000 पीपल आर फाउंड एज अ कोरोना पॉजिटिव। और रोज का आज का अगर मैं देखूं कहूं तो 12,881 12,881 आर वन डे में राइज हुआ है। लेकिन अगर आप रिकवरी का रेट देखें तो वो 3 में से 2 लाख रिकवर्ड हो गए। डेथ अगर देखें आप 12,000 है तो इट इज ऑलमोस्ट 2.83% के नीचे ही है। And the good news which I would like to share, there is always blessing in disguise. लेकिन इंडिया में अगर आप वर्ल्ड का परसेंटेज देखिए रिकवरी का और डेथ का, तो इंडिया का फार लेस है। और एक चीज जो हम देख रहे हैं, दिस ऑरेंज इज जैसा रेट बढ़ रहा है वो है, बट द ग्राफ ऑफ द ग्रीन विच इज बिकमिंग रिकवर्ड इज ग्रोइंग फास्ट। जितने तेजी से लोग बढ़ रहे हैं उतनी ही तेजी से रिकवरी का रेट बढ़ रहा है। सो दिस इज गुड न्यूज इन इंडिया। और ये क्यों हुआ? क्योंकि एक हमारी इनेट इम्यूनिटी है, हमारी एक आयुर्वेद हमारी घर घर में घुसा है। इट इज अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर, एक हमारी धरोहर का हिस्सा है। हमारा खान पान, जीवन शैली, खाना, सोना, उठना, बैठना, सोचना, ये सब कुछ आयुर्वेद है। बिकॉज आयुर्वेद इज अ साइंस ऑफ हेल्थी एंड हैप्पी लिविंग। क्या आयुर्वेद है? क्यों मैं आयुर्वेद अच्छा है कह रही हूँ? क्योंकि इट इज अ साइंस ऑफ हेल्थी एंड हैप्पी लिविंग। अगर हम हर एक पैथी, जैसे कि अभी डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने कहा था कि हर एक पैथी, आयुर्वेद, एलोपैथी, होम्योपैथी, यूनानी, ऐसी कोई हर कोई कोरोना से लड़ने के लिए कुछ कुछ उपाय शोध रहे, उपाय ढूंढ रहे हैं और वो लोगों को उपचार कर रहे हैं। और पहली बार 200 साल में पहली बार ऐसे हुआ है कि कोई भी सिस्टम में कोई एक ठोस इलाज अभी तक नहीं है। Everyone, each and every system, even allopathy, they are working with empirical evidence. इसका मतलब हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन हो, चाहे अजिथ्रोमाइसिन हो, चाहे रामाप्रिविल हो, ये empirical evidences। लोग मर रहे हैं वो कोरोना से नहीं, ये ड्रग के साइड इफेक्ट से मर रहे हैं। Because those are highly toxic medicines. कोई भी वैक्सीन भी नहीं आया है एंड इन डिफरेंट, इसीलिए वर्ल्ड में सभी लोग इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं प्रोएक्टिव, एंड एवरीवन इज ट्राइंग टू हेल्प द ह्यूमैनिटी थ्रू द एविडेंसेस। दी जो एक विजडम है, ट्रेडिशनल विजडम, एक्सपीरियंशियल विजडम है, उससे वो हेल्प कर रहे हैं। और आयुर्वेद में भी कोरोना जैसे महामारी के लिए एक विजडम है, देयर इज अ मेथड एंड मैनेजमेंट है, जिसको जनपद ध्वंस व्याधि कहा। इसका मतलब पूरे जनपद को एक साथ अगर कुछ बीमारी होती है तो इसके लिए कैसे हम उससे उभर के आए, कैसे उसके ऊपर हम उसमें से निकल के आए, उसके लिए एक विजडम कहा है। और यही हम अभी कर दे रहे लोगों को, इम्यूनिटी बूस्टिंग। इम्यून बूस्टिंग इज अ की रोल, क्योंकि जनपद को एक साथ अगर किसी को कोरोना जैसे वायरस ने अटैक कर लिया तो उन व्यक्ति को नहीं होता जिनकी इम्यूनिटी अच्छी। तो आयुर्वेद में कई सारे ऐसे इम्यून बूस्टिंग मेजर्स कहे हैं, और खासकर ऐसे महामारी, पैंडेमिक और एपिडेमिक जब हो जाता है उसके लिए तो हर किसी को अपने स्वास्थ्य पे ज्यादा ध्यान रख देना है, यही आयुर्वेद कहता है। और इम्यून बूस्टिंग एक्सटर्नल, इंटरनल, लोकल एंड सिस्टमिक सभी कहे हैं, विच आई एम गोइंग टू शेयर। Ayurveda is a way of healthy life. It is only not the way of healthy life, but it is way of healthy and happy life. तो हम ये कहते हैं कि अन्य सिस्टम जो है वो सिकनेस से, इलनेस से वेलनेस तक लाते हैं, लेकिन आयुर्वेद क्या कहते हैं, बीइंग अ नॉलेज सिस्टम ऑफ हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ, वो सिकनेस से, इलनेस से वेलनेस तक लाता है, लेकिन उसके बाद एक एडेड एडवांटेज ये देता है कि वो हैप्पीनेस भी देता है। सो दैट्स हाउ इट इज अ साइंस ऑफ हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। और वो हमें, जहाँ हर किसी को स्टिग्मा है, डर है, फियर है कि मैं अगर पेपर को हाथ लगाऊं, फाइल को हाथ लगाऊं तो मुझे कोरोना तो नहीं हो जाएगा,
ये डर हर किसी को आज है, तो ये डर से बाहर लाके लीडिंग अ कॉन्फिडेंट फियरलेस लाइफ, ये आज हम हर किसी को दे सकते हैं, एंड दैट्स व्हाट वी आर डूइंग, एंड दैट्स हाउ इट क्रिएट्स अ हार्मनी बिटवीन माइंड, बॉडी एंड सोल, एंड इट ऑप्टिमाइजेस द बैलेंस between the internal system and the external environment. तो कोरोना जैसे कई सारी बीमारियां उससे भाग सकती है, हम उससे बाहर आ सकते हैं, एंड इट दैट्स व्हाई बीइंग अ एज ओल्ड साइंस कोई नई चीज नहीं है, हम हजारों साल से उसको प्रयोग कर रहे हैं, हमें केवल उस पर थोड़ा सा एक फेथ, विश्वास रखना चाहिए, अपनाना चाहिए, और जो एक माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सभी देशवासियों को, हमेशा वो कहते हैं 125 करोड़ देशवासियों को एक संदेश है कि हम आत्मनिर्भर बने, तो क्यों ना हम अपनी स्वास्थ्य का रक्षा अपने आप करके हम क्यों ना आत्मनिर्भर बने, तो कोई भी वायरस हो तो हमारा शरीर की इम्यूनिटी ही इतनी मजबूत हो, तो ये जंग में हमारी इम्यूनिटी ही जीते और कोरोना जैसे कोई भी कुछ भी ना कर सके। तो इसीलिए आज मैं थोड़े ही समय में, कुछ क्षणों में ये कहना चाहूंगी कि अगर किसी को सर्दी खांसी जुकाम हुआ तो डॉक्टर से आप गोली ले सकते हैं, बुखार हुआ तो गोली ले सकते हैं, लेकिन इम्यूनिटी वीक हो गई, स्वास्थ्य ये हर किसी की जिम्मेवारी है। एक छोटे से वायरस ने पूरे वर्ल्ड को, दुनिया को ये सिखाया, वी हैव लर्न मेनी थिंग्स, बिकॉज कोरोना का नाम ही, कोरोना 19 का नाम ही नोवेल कोरोना वायरस है, जैसे कि H1N1 हो, फ्लू हो, कई सारी बीमारी है कोरोना वायरस से हुई, बट दिस इज अ नोवेल कोरोना वायरस, पूरे दुनिया को ही 4 महीने का ही ज्ञान दिया है, जैसे कि हमारे जज साहब ने कहा कि एक्चुअली साइंस डज नॉट नो दैट, नो, एवरीवन डज नॉट नो, तो ये सही बात है, ये नोवेल कोरोना वायरस के बारे में बहुत नई नई जानकारी आ रही है, रोज कुछ हम नया सीख रहे हैं। किसी ने कहा कि निमोनिया से डेथ होती है, फिर आ गया कि नहीं हाइपोक्सिया ऑक्सीजन की कमी से होती है, अभी ये कह रहे कि थ्रोम्बोसिस मतलब गुठली, वो ब्रेन में जाके उससे डेथ होती है, लेकिन ये वी आर लर्निंग एवरी डे, लेकिन अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी है तो चाहे कोरोना कुछ भी करे, ये टारगेट ऑर्गन फेल्योर होगा नहीं। इसीलिए आज हम आयुर्वेद से, आयुर्वेदिक जीवन पद्धति से, जीवन शैली से ये सबको कहना चाहते हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी भी और आयुष मंत्रालय भी हर किसी को कह रहा है कि मेरा स्वास्थ्य ये मेरी जिम्मेवारी है, माई हेल्थ इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई डॉक्टर हमें लाके वो देगा नहीं, क्योंकि आई हैव टू अडॉप्ट अ गुड लाइफस्टाइल, गुड डाइट, स्लीप पैटर्न, रेस्ट मुझे अच्छा लेना चाहिए, खाने में अच्छा देना चाहिए, सप्लीमेंट जो इम्यून बूस्टर्स है, रसायन चीज, औषधियां है, ये मुझे खुद लेना चाहिए। और इसी कोरोना में हर कोई डर क्यों रहा है, क्योंकि हमारा खुद का पार्टिसिपेशन इसमें ज्यादा अपेक्षित, जो खुद एक डिसिप्लिन लाइफ रहेगा, डिसिप्लिन लाइफ को अपने में इनकलकेट करेगा, ये इसी महामारी में टिकेगा। दैट इज द मैसेज वी वुड लाइक टू गिव टू एवरीवन। इसीलिए कहा है हितकर आहार और हितकर आयु कैसे हो, यही आयुर्वेद सिखाता है और वो हमें करना चाहिए। दूसरी एक चीज जो हम कर सकते हैं, हम स्ट्रांगली कॉन्फिडेंटली हर किसी को ये कहेंगे, क्योंकि जो इम्यून बूस्टिंग है, इम्यूनिटी बढ़ती है, वो केवल फिजिकल हेल्थ के लिए नहीं होती है, वो मेंटल हेल्थ के लिए होती है। हमारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ, वो अच्छा लगता है। और इम्यूनिटी जिनकी स्ट्रांग होती है वो मेंटली स्ट्रांग होते हैं, एंड वो रिसर्च भी ये कहता है। और जिनकी कोमॉर्बिड कंडीशन है, जैसे कि जिनको डायबिटीज है, हार्ट डिसीज है, ब्लड प्रेशर है, मोटापा है, उनमें भी इम्यूनिटी थोड़ी वीक होती है और वो थोड़े एंग्जियस ज्यादा होते हैं। तो हमें ये देखना चाहिए कि ये कोमॉर्बिड कंडीशन में हम आयुर्वेद से, लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर में आयुर्वेद से कैसे बचें। इसीलिए मैं आज खास तौर से फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ
में इम्यून बूस्टिंग आयुर्वेद के मेजर से सिंपल है, आप हम हर कोई कह सकते, हमारे घर में ही ये उपाय है, ये बस हमें आज जानना है। आंवला कैसे काम करता है, गिलोय कैसे करती है, दालचीनी कैसे करती है, those things we just have to learn। और ये मेंटल हेल्थ का एक में लेटेस्ट पेपर मैंने देखा जो 19 में पब्लिश हुआ है, 2000 गत वर्ष में पब्लिश हुआ है। उन्होंने एक कोरिलेशन कहा है कि जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, इम्यून सिस्टम जिनकी वीक होती है, दोज आर मोर स्ट्रेस एंड उनकी मेंटल हेल्थ भी कनेक्टेड होती, दे बिकम ससेप्टेबल टू दी स्ट्रेस कंडीशन, और उनमें फियर, एंजाइटी, फोबिया, नींद ना आना, स्लीपलेसनेस, ये चीजें पाई गई है। इसीलिए अभी इस कंडीशन में कोरोना से बचने के लिए, मेंटल एंड फिजिकली स्ट्रांग रहने के लिए हमें हमारी इम्यून सिस्टम को, रोग प्रतिकार क्षमता को मजबूत करना चाहिए। और ये कैसे होगा, मेंटल हेल्थ भी अगर हमें डर से, कोरोना के डर से बचना है तो क्या कैसे करना चाहिए? तो सबसे पहले ये जो डर पैदा हुआ है ये केवल अज्ञान के कारण हुआ है। जैसे जब जज साहब ने कहा कि हमें कुछ पता नहीं और इसीलिए कुछ पॉजिटिव भी हो गया, तो स्टिग्मा क्यों है? क्योंकि पता नहीं। एक्चुअली अगर उसका ज्ञान हमें हो जाए कि ये कुछ नहीं है, केवल एक तगड़ा फ्लू है। फ्लू किसी को होता है, सर्दी खांसी जुकाम होते हैं तो हम तो किसी को अछूत नहीं मानते, तो ये एक तगड़ा फ्लू है। और पॉजिटिव भी हो गए तो वो निगेटिव तुरंत हो सकते हैं। अच्छे खान पान, आइसोलेशन, हैंड हाइजीन अगर हमने फॉलो किया, मास्किंग किया, सोशल डिस्टेंस 1 मीटर का रखा और इम्यूनो बूस्टर मेजर्स लिए, हमारी स्वास्थ्य को अच्छा मजबूत बना दिया, तो हमें कहीं भी खतरा नहीं। ये अगर कोरोना वायरस करता क्या है अंदर, ये अगर हमने सही जानकारी ली तो मुझे लगता है कि हमारे डर से हम बाहर हो जाएंगे। और आयुर्वेद में भी यही कहा है, किसी को डिप्रेशन हो गया, किसी को एंजाइटी हो गई, मेंटली कोई वीक है, तो व्हाट इज द बेस्ट मेडिसिन? तो आयुर्वेद ये कहता है, धी धैर्य आत्मविज्ञानम मनोदोषौषधम परम। व्हाट इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर मेंटल माइंड एंड मेंटल हेल्थ? आयुर्वेद ये कहता है कि अपने आप को समझाना, सेल्फ अवेयरनेस, अवेयरनेस अबाउट माय हेल्थ, awareness about the virus, what does it do in the body and how do I prevent it, awareness about preventive measures, यही सबसे बड़ी बड़ी जरूरत है आज के दिन में, और वो फॉलो करना। दूसरा विज्ञानम, विज्ञानम अबाउट द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द वायरोसिटी एंड इट्स इम्प्लीकेशन ऑन द बॉडी। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है मॉरल बूस्टअप, हम एक दूसरे को सहारा दें, क्योंकि काउंसलिंग जो कोरोना पॉजिटिव है या जो नहीं है, स्वस्थ जनता है, कोर्ट में आने वाले हर किसी स्टाफ जो है, जो हर किसी को ये एक विश्वास एक दूसरे को देना, तो इसीलिए मैं बहुत बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि आज पूरे डिस्ट्रिक्ट में हर किसी स्टाफ के लिए ये आयोजित किया कि जो एक दूसरे का भी साथ दे रहे हैं और जो बाहर से भी लोग आ रहे हैं उनको भी एक मॉरल बूस्टअप करना, ये धैर्य मतलब मॉरल बूस्टअप करना, मॉरल सपोर्ट इज द की ऑफ मेंटल हेल्थ। घर में भी जो बुजुर्ग है, एल्डरली पॉपुलेशन है, उनके मॉरल बूस्टअप हम करें तो उनको भी किसी को कोरोना नहीं होगा। जो वल्नरेबल पॉपुलेशन, छोटे बच्चे हैं या प्रेग्नेंट वुमन है, जो वीक माइंडेड है, उनको सपोर्ट देना बहुत बहुत जरूरी है। और ये डर का मुख्य कारण ये है अज्ञान, और ये अज्ञान से बाहर होना, अवेयरनेस होना कि कोरोना करता क्या है, यही सबसे बड़ा डर से बाहर आने का तरीका है। क्योंकि एक शंका विषय, क्योंकि कोर्ट का जो न्याय देवता भी यही करती है कि असली क्या है, व्हाट इज वास्तव क्या है और वास्तव से परे क्या है, यही हम देखते हैं। तो आप देखो, सिंपल कांटा ने चुभा है, लेकिन किसी को ऐसे लगा कि मुझे सांप ने काटा है, तो इट विल हैव, अगर किसी को ये शंका विष हो गया कि पॉइजन मेरे शरीर में घुस गया है, तो फिजिकली द रिसर्च सेज दैट फिजिकली एंड मेंटली इट विल हैव द सेम इम्पैक्ट, बिकॉज आपकी इम्यून सिस्टम वही रिएक्ट करती है सांप ने काटने जैसे।
इसीलिए शंका विष ही हर किसी बीमारी की जड़ है। ये एक्चुअली अभी जो कोरोना यहाँ बेसिकली जो डिफरेंट कंट्रीज में कोरोना हुए, वुहान से आया, वो इटली गया और सभी जगह से घूम के इंडिया में आ गया, तो वो वायरोसिटी भी बदल गई और वायरोसिटी, वायरल लोड और उसकी वेरिएशन और म्यूटेशन भी इंडिया में हुआ है, तो वो इतना घातक है नहीं। सिम्टम्स भी सर्दी, खांसी, जुकाम, सोर थ्रोट, मैलेज और बॉडी एक होता है, उसके लिए इलाज आयुर्वेद में और सभी सिस्टम में है। हमें केवल आइसोलेट करके अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है। तो ये शंका इससे दूर होना ये सबसे जरूरी है। इसीलिए हमें कोरोना क्या होता है ये भी समझना चाहिए, और आयुर्वेद भी यही कहता कि इसके साथ साथ अवेयरनेस के साथ साथ आपको क्या करना चाहिए। जो स्वस्थ रहता है, भवती अरोगाः, कौन रोगी रहता है, मतलब कौन सी व्यक्ति स्वस्थ है, तो जो नरो हिताहार विहार से, मतलब जो हितकर आहार करता है, जो समय पे भोजन करता है। हितकर आहार मतलब TTSS, मतलब अपने टेस्ट का। हम ये नहीं कहते कि आप अपनी टेस्ट छोड़िए, आयुर्वेद मतलब कोई बिल्कुल टेस्टलेस डाइट, ऐसा नहीं है। समतोल क्षीरस युक्त टेस्टी खाना खाइए, लेकिन दूसरा ताजा लीजिए, जो लेंगे वो ताजा लीजिए। SS मतलब समय पे लीजिए। समय कौन से समय पे, तो सुबह 8 से शाम के 8 बजे में आपका सुबह का नाश्ता हो, जबकि सूर्य की रोशनी आती है, हमारे अग्नि भी तभी स्टिमुलेट होते हैं, ऑल डाइजेस्टिव हार्मोन्स, देयर इज अ नेचर सिग्नेचर। जब बाहर जैसा है वैसे ही शरीर के अंदर होता है, तभी भूख लगती है, ऑल डाइजेस्टिव फायर विच इज इग्नाइटेड। तो 12 से 1 बज के में ही हमें हमारा लंच लेना चाहिए, जब सूरज की रोशनी नीचे हो जाती है, रात हो जाती है, तो उसके पहले मतलब 8 बजे से पहले ही मुझे मेरा डिनर लेना चाहिए। ये समय पे खाना लेना ये बहुत जरूरी है। और इस कोरोना से, क्योंकि ये इसलिए जरूरी है कि अन्न का और इम्यून सिस्टम का बहुत तगड़ा संबंध है, क्योंकि जिनको इंडाइजेशन बहुत ज्यादा है तो वो टॉक्सिन रिलीज होते हैं और वही फ्री रेडिकल करते हैं और वो इन्फ्लेमेशन होता है, और वही इम्यून सिस्टम को वीक करके छोटे छोटे वायरस शरीर पे अटैक करते हैं। इसलिए खाना ये बहुत सोच समझ के लेना चाहिए। कैसा खाना लेना चाहिए, लास्ट केस सुपाच्य, मेरी भूख कितनी है वो देख के हल्का, थोड़ी भूख 1/4 भूख चाबुत रहे उतना ही मुझे खाना चाहिए, पानी पीना चाहिए, और आमाशय का 1/4 हिस्सा में मुझे जब ऐसा लगे कि मैं थोड़ी और एक रोटी ले सकती तब मेरा खाना मुझे कंप्लीट करना चाहिए। इतना खाना लेना चाहिए कि एक बार खाना पचकर 6 घंटे के बाद मुझे भूख लगनी चाहिए। रात का खाना पचकर मुझे दिन में भूख लगनी चाहिए, दिन का खाना पचकर मुझे शाम को भूख लगनी चाहिए। इसको हम सुपाच्य कहते हैं, सहज पचे ऐसा हल्का, जैसे दाल, रोटी, सब्जी, मूंग की दाल हो। फल जरूर ले, इन दिनों में जितने भी फल, चाहे आम हो, चाहे अनार हो, अंगूर हो, दाडिम हो, जितने भी सीजनल फ्रूट आते हैं वो जरूर एक कोई ले। ड्राई फ्रूट ले, ताजा सुपाच्य स्निग्ध आहार जरूर ले। हर कोई कहता है कि घी से बचे, में हम जरूर कहते हैं कि 1 कप दूध और 1 चम्मच घी जरूर लेके, क्योंकि आयुर्वेद ये कहता है कि नित्यम घृत क्षीराभ्यासो रसायनाम श्रेष्ठ, मतलब घृत और क्षीर मतलब मिल्क, 1 glass of milk and 1 teaspoonful of ghee is really best immune enhancer, उसको जरूर लेना चाहिए। सेकंड क्या है, विहार से भी, मतलब हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो 8 3 24, मतलब 8 घंटे 24 घंटे को हम 3 हिस्से में बांटे। 8 घंटे हम प्रोफेशनल वर्क करें, जैसे कि आपका कोर्ट का समय भी 8 घंटे का है, हर कोई ऑफिस का वर्क भी 8 घंटा होता है, उसमें हम फुल्ली डेडिकेटेड अपना प्रोफेशनल वर्क करें। बचे 8 घंटे, सुबह के 4 घंटे और शाम के 4 घंटे हम अपने खुद को, फैमिली को, कम्युनिटी को, हमारा जो एक्सरसाइज उसमें आधा घंटा जरूर करें, जो योग हो, मेडिटेशन है, क्योंकि अभी वर्ल्ड योगा डे आ रहा है परसों,
जरूर हम कुछ आधा घंटे का योगासन, मेडिटेशन, प्राणायाम जरूर करें। और ये जैसे कोरोना रेस्पिरेटरी सिस्टम को अटैक कर रहे हैं, इसीलिए लंग और हार्ट की कैपेसिटी बढ़ने के लिए आप भ्रामरी, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये जो बहुत सिंपल प्राणायाम ये जरूर करें। सूर्य नमस्कार करें, चलने के लिए जाइए, ये जरूर कर सकते हैं सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए। और कुछ हमारी हॉबी, गार्डनिंग हो चाहे कुछ भी हो, घर के लोगों के लिए, अपने और अपनों के लिए समय निकालिए, शाम के और सुबह के 4 घंटे। लेकिन जो बचा तीसरा हिस्सा जो 3 में से है, वो हमारा रेस्ट के लिए होना चाहिए, नींद। क्योंकि हम ज्यादातर ऑफिस का काम घर की टेंशन ऑफिस में ले आते। देयर शुड बी करेक्ट बैलेंस बिटवीन वर्क एंड लाइफ बैलेंस होना चाहिए। और रात के 6 से 8 घंटा अच्छी साउंड स्लीप होना चाहिए, क्योंकि स्लीप हाइजीन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। और रात में जो रेस्ट लेते हैं तभी हमारे जो हैप्पी हार्मोन्स है, पॉजिटिव हार्मोन्स है एंड कंस्ट्रक्टिव हार्मोन वो सिक्रीट होते हैं। इसीलिए वी हैव टू गिव द टाइम फॉर सिक्रीशन एंड सिंथेसिस ऑफ द बायोजेनिक अमाइंस एंड द हैप्पी हार्मोन्स लाइक ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन्स। ये नींद अच्छी हो तो अच्छी सीक्रेट होते हैं, इसीलिए इसमें हमें बैलेंस रखना चाहिए आयुर्वेदिक इम्यूनोमोड्यूलेशन सप्लीमेंट के साथ। लेकिन हमारा ये तो कोई डॉक्टर नहीं देने वाला, ये हमें खुद को करना चाहिए। और जो ऐसा करता है, आई एम 100% श्योर कि उनको कोई भी कोरोना जैसे अगर अंदर भी गए तो कुछ होता नहीं, क्योंकि वी रियली ट्राई टू फॉलो दी ऑल द डिसिप्लिन। और दूसरा ये कहा है समीक्षाकारी विषयेषु असक्तः, मतलब जितने भी एडिक्शंस है, चाहे अल्कोहल हो, सिगरेट हो, तो उससे थोड़ा परे रहे। और समीक्षाकारी मतलब इन पैंडेमिक सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, जो उचित कौन कहा है उसमें हैंड सैनिटाइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट। हम कहीं भी फाइल को हाथ लगाए, कुछ भी करें तो खाने से पहले सैनिटाइज करें, या फिर मास्क पहने, सोशल डिस्टेंस करें, इतना भी करें, आइसोलेट करें। अगर सर्दी खांसी जुकाम है तो खुद को आइसोलेट करें, तो मुझे और दूसरों को हम बचा सकते हैं, जरूर कहना चाहिए। और सत्य पराहा, आपको एक्सेस मिल गया मेरे सिस्टम का? ये सत्य पराहा बहुत जरूरी है, क्योंकि आई रियली कमिट माई सेल्फ, ये मुझे हुआ है और आइसोलेट करे तो हम सबको इसमें से बचा सकते हैं। मैं 5 कम समय में ये बताऊंगी कि हमें ज्ञान होना चाहिए कोरोना करता क्या है। कोरोना बहुत ही बुरा हुआ मेरे साथ। जीवित वायरस नहीं, इट इज आरएनए, मतलब इट इज नॉट अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये आरएनए नहीं कर पा रही मीटिंग, उसका अभी जाओ, मैं बहुत बुरे मूड में हूँ, सब खराब हो गया। तो शरीर में पहले क्या करना चाहिए हमें, हेलो, जो कोरोना जैसे क्राउन ऑफ दिखते हैं, ये जो आपको स्पाइक्स दिख रहे हैं, ये क्राउन है कोरोना का। ये शरीर के अंदर उसकी एंट्री ही रोकनी चाहिए। ये कैसे रोकेंगे, तो हमें बैरियर कहे, जैसे कि मैं क्या करती हूँ, हम सबको यही कहते हैं कि हम जब बाहर जाएंगे, जैसे कि अभी कोर्ट भी खुलेगा, हम सब लोग, आप ऑफिस में जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, कई सारे लोगों से संपर्क होगा, तो उनसे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है तो वो तुरंत 6 घंटे रहते हैं, 3 से 6 घंटे, तो वो अंदर जा सकता है। तो ये कब जाएगा, अगर मान लो इस फाइल पे किसी का ड्रॉपलेट, मतलब किसी ने छींका और इसके ऊपर उसकी ड्रॉपलेट आए, तो ये अपने आप तो नहीं जाएगा, ये वायरस को कोई हाथ पैर नहीं। मैं जब हाथ छूऊंगी वो मैं नाक को लगाऊंगी या मुंह को लगाऊंगी या आंख को लगाऊंगी, तभी वो अंदर जाएगा। तो मुझे क्या करना चाहिए, या तो उसको छूना नहीं चाहिए, अगर छू लिया तो मुझे बार बार सैनिटाइज करना चाहिए या हाथ धोना चाहिए। अगर मैं नहीं कर सकती तो मुझे छूना नहीं चाहिए, इसीलिए मुझे मास्क पहनना चाहिए। अगर ये मैं नहीं कह सकती तो आयुर्वेद ने एक बहुत ही आसान तरीका दिया है कि मैं ये रोज सोचती हूँ कि मैं मेरा कोरोना के से किसी, क्योंकि मैं हम तो हॉस्पिटल में आते हैं तो संपर्क हो ही गया, एक्सपोजर हो गया, तो हम एक अणु तेल, छोटा सा ऑयल, घर में जो सरसों का तेल हो, तिल का तेल हो या घी हो, तो हम ये नाक में लगाते हैं। नॉस्ट्रिल में कोई भी ऑयल लगाने से, मैं आपको उसका
दिखाने वाली हूँ उसकी बॉटल का चित्र। तो वो अगर नाक में लगाने से होता क्या है, नाक के अंदर एक फैट लेयर तैयार होता है, दैट इज अ फिजियोलॉजिकल मास्क, बायोमास। जैसे मैं मास्क लगाती हूँ ये, ऐसा ही मास्क ये अंदर तैयार होता है, कोई भी तेल। ये फैट अंदर होने से, क्योंकि ये कोरोना जो डेड वायरस है वो किसी लिविंग सेल को अटैच हुआ, ये अंदर म्यूकस को अटैच हुआ, लिविंग सेल को अटैच हुआ, तभी वो रिप्लिकेट होगा, तभी उसके ये रिप्लिकेट होना शुरू हो जाएगा। ये किसी का आधार लेता है तो हम उसको अंदर नेजल एपिथेलियम में पेनिट्रेट ही नहीं होने देते। तो हम बहुत सिंपल हर किसी को करना है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं। आप ऑयल को लगा दीजिए नाक के अंदर। देखो, हमारे किसी को भी याद होगा, हमारे जब छोटे थे, जब कंजंक्टिवाइटिस होता था, तो हमारे दादी माँ नानी माँ घी का काजल लगाते, दैट इज अ फैट लेयर। फैट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ वायरस एंड बैक्टीरिया इनसाइड आवर सिस्टम। ये हमें करना चाहिए। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, तो कोरोना वायरस मान लो नाक से अंदर भी गया या मुंह से अंदर गया, तो ये 4 दिन गले में बैठेगा, तो हमें उसकी एंट्री अंदर रोकनी है, दैट इज अ फर्स्ट मेजर। तो मैं क्या करती हूँ और हम क्या करते, गर्म पानी में नमक और हल्दी डाल के गरारे करना चाहिए। गरारे करने से टर्मेरिक हैज अ एंटीवायरल, मतलब इट प्रिवेंट्स द attachment of the virus to the living cell. Or saline is a antibacterial antiviral. It has got, it disintegrates the outer fat layer of the वायरस की जो आरएनए की आउटर लेयर है उसको वो डिसइंटीग्रेट करता है, और गर्म पानी में उसकी एक्टिविटी वीक होती है। तो रोज सुबह शाम हल्दी नमक पानी की गरारे करें, यही मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने भी एडवाइजरी कही, ये करना चाहिए। मान लो किसी भी कारण एंट्री हो भी गई, तो व्हाट इज द सेकंड स्टेप, तो वो रिप्लिकेट करता है। तो वो वायरस की एक्टिविटी को ब्रेक करने के लिए, रिप्लिकेशन ना हो, ये हमें करना चाहिए। तो जो कड़वे चीजें हैं, ये वायरस को रिप्लिकेशन के लिए हम कंड्यूसिव एनवायरनमेंट ना करें। जैसे कृमि होते हैं, उनको मीठा पसंद है, तो इसीलिए कड़वी चीजें जो नीम है, तुलसी है, घर में दालचीनी है, कोई भी कड़वी चीजें है, मेथी दाना है, मसाले के पदार्थ है, वो आप लेना शुरू करें। तो हमने हल्दी कही है, दूध में हल्दी डाल के ले लीजिए। काढ़ा जो है, जो दालचीनी, काली मिर्च, शोट, तुलसी, नीम, गिलोय, ये सब कड़वी चीजें उनसे बना हुआ है, तो वो अगर सुबह शाम अगर ले चाय जैसा, तो ये वायरस अंदर है तो वो रिप्लिकेशन नहीं होता। इट इज कॉल्ड एज अ एंटीवायरल इफेक्ट। वायरस को रिप्लिकेशन के लिए मदद ना करना, ये हल्दी भी सिंपल करती है, ये करना चाहिए। और ये अगर ये रिप्लिकेट भी हो गया तो हमारी इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाती है, और वो इम्यून सिस्टम को एक इम्यून कास्केड होता है, और इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन आ जाती है, और वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में आती है, और वो टारगेट ऑर्गन डैमेज, जो हमारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, उसका वो क्षति पहुंचाती है, डैमेज करती है। तो थर्ड स्टेज में हमें क्या करना चाहिए, हर लेवल पे हमें रोकथाम करनी है। लेकिन हो भी गया, पॉजिटिव हो गया, तो सिम्टम कब आएंगे, ये अगर इन्फ्लेमेशन आएगा तो सर्दी खांसी जुकाम और बुखार आना, फीवर इज अ रिएक्शन ऑफ आवर बॉडी, दैट इज इम्यून सिस्टम हमारी एक्टिवेट हो गई, सैनिक वहां आ गए, दैट इज अ मार्कर, दैट इज अ इंडिकेटर। तो अच्छी चीज है, इम्यून सिस्टम इज एक्टिवेटेड, लेकिन हमें हमारी ऑर्गन को क्षति ना पहुंचे, ये हमें देखना चाहिए। इसीलिए बुखार को कंट्रोल रखना चाहिए। और इम्यून बूस्टर, जो हमारे इम्यून बूस्टर्स है, जैसे आंवला और गिलोय, ये एंटीऑक्सीडेंट है, मतलब जो ये फ्री रेडिकल, साइटोकाइन स्टॉर्म में जितनी फ्री रेडिकल्स हुए उन सभी को शरीर के बाहर निकालता है, उसको कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट। इसी को ही इम्यूनोमॉड्यूलेशन करता है, और ये ऑर्गन को प्रोटेक्ट करती है। इसीलिए इम्यूनो प्रोटेक्टिव होने और ये इम्यून सिस्टम जो एक्टिवेट हुई उसको वो डाउन रेगुलेट करते हैं। तो ये
पूरा ये जो कास्केड ऑफ दी एक्शंस है, ये हर लेवल पे आयुर्वेद काम करता है। इनएक्टिव, असिम्प्टोमेटिक और एक्टिव लोड, एक्टिव जब है तभी भी ट्रीटमेंट भी करता है, ये हमें करना चाहिए। इसीलिए जब इसी के कारण जो हमारी इम्यून सिस्टम को अच्छा करने का उपाय आयुर्वेद में है, सिंपल है, आंवला, गिलोय, तुलसी, नीम, इसके अलावा और ज्यादा तो है नहीं। और हमारे घरेलू के मसाले के पदार्थ जो है डिब्बे में जो है दालचीनी, सौंफ, काली मिरी, लौंग, यही लेके जब पूरी दुनिया में 200 कंट्रीज में कुछ तो एम्पिरिकल ट्रीटमेंट कर रहे थे, एजिथ्रोमाइसिन और सब कुछ कर रहे थे, आयुष मंत्रालय जो भारत सरकार के अंतर्गत एक सेपरेट मंत्रालय है, उन्होंने क्या किया, सबसे पहले जहां पूरा लॉकडाउन था पूरा वर्ल्ड, उन्होंने अपनी एक इम्यून बूस्टिंग एडवाइजरी जारी की, जो सेल्फ केयर मेजर हर कोई अपने आप कर सकता है। तो ये मिनिस्ट्री के वेबसाइट पे अवेलेबल है। वो क्या है, तो वो आहार, खान पान कैसे ले, जो दोषों को, शरीर के दोष, धातु, मल, जो मतलब हमारे सिस्टम को बैलेंस रखे, हमारे शरीर का और मन का संतुलन रखे, जिसमें योगा करो ऐसा भी था, हमारा लाइफस्टाइल कैसे हो, रेस्ट अच्छा लो ये भी था, गर्म पानी पियो क्योंकि अभी समर ज्यादा है, तो हम यही कहे कि फ्रिज का पानी ना लो, मटके का ले सकते हो, रूम टेम्परेचर का, लेकिन बर्फ डाल के मत लेना। लेकिन यही एडवाइजरी कही इस जो इम्यून बूस्टिंग मेजर्स का है और सिंपल मेजर का है, जैसे कि आंवले का च्यवनप्राश लो, गिलोय की समशमनी बेटी लो। तो ये जो मेजर्स है, जिसमें जो कुछ जनरल मेजर है हर कोई कर सकता है, कोई प्रिवेंटिव मेजर है कि ऑयल, जैसे गर्म पानी में 1 चम्मच ऑयल डालो और रोज सुबह मुंह में भी रखो, जिसको ऑयल पुलिंग कहते हैं, या नाक में लगाओ, वो प्रिवेंशन के लिए। अगर हो भी गया तो रिप्लिकेशन कंट्रोल करने के लिए हल्दी वाला पानी ले लो या हल्दी वाला दूध ले लो, जिसको गोल्डन मिल्क कहा। तो हम यही कहते कि स्टार्ट योर डे विद गोल्डन वाटर एंड कंक्लूड योर डे विद गोल्डन मिल्क। तो ये सिंपल चीजें मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने कही, और उसका एक इम्पैक्ट असेसमेंट, जैसे कि मिनिस्ट्री ने 4 ही सिंपल इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स चूज किए, जिसमें मुलेठी भी है, अश्वगंधा भी है, आंवला भी है और गुडुचि भी है। और वो हमने क्लिनिकल ट्रायल भी शुरू कर दिए, उसके प्रिलिमिनरी रिजल्ट बहुत एनकरेजिंग है, खास कोरोना के अगेंस्ट। तो ये अगर हम ले ले तो अश्वगंधा भी ले ले तो नींद भी अच्छी आती है, मन भी संतुलित होता है। तो ऐसे बहुत सिंपल मेजर को असेस करने के लिए आरोग्य सेतु ऐप जैसा आयुर्वेद संजीवनी ऐप भी है, जिससे हमें इम्पैक्ट असेस कर रहे हैं। तो यही एक हम कह रहे हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और प्रिवेंशन के लिए, रिप्लिकेशन स्टॉप करने के लिए और टारगेट ऑर्गन डैमेज को कम करने के लिए हम आयुर्वेद कर सकते हैं। और इसीलिए प्रोफिलैक्सिस, सिम्टम मैनेजमेंट, सिंपल बुखार है, सर्दी खांसी जुकाम है तो क्या करना चाहिए, और इम्यून बूस्टिंग के लिए क्या करना चाहिए, ये हम कर सकते हैं। तो यहाँ लिस्ट ही हमने दे दी है कि गिलोय लेना चाहिए इम्यूनिटी के लिए। गिलोय का रस हो सकता है, क्योंकि आज नहीं मिली तो गिलोय का चूर्ण आता है, गिलोय का अरिष्ट अमृता, गिलोय का नाम अमृता है संस्कृत में, उसको गुडुचि भी कहते हैं। तो गुडुचि वटी, अमृता वटी या गुडुचि वटी का ही नाम संशमनी वटी है, वो ले सकते हैं। आंवले का जूस, आंवले का मुरब्बा, आंवले की कैंडी, आंवले का चूर्ण या आमलक रसायन, मतलब आंवले का चूर्ण का, आंवले का भावना दी है, या आंवले का च्यवनप्राश, लेकिन ये किसी को अभी गर्म हो सकता है इसलिए वो कम ले, लेकिन आप काढ़े में ही आंवला डाल दीजिए या आंवले का जूस ले लीजिए आंवला अदरक के साथ। सो दोज आर दी बेस्ट इम्यून बूस्टर। हमने एक रसायन वटी बनाई है जो क्लासिकल, जो गिलोय और आंवला दोनों को साथ में करके एक गोक्षुर जो किडनी को प्रोटेक्ट करता है, और तीनों के कॉम्बिनेशन से रसायन चूर्ण वटी हम पिछले 2 महीने सुबह शाम ले रहे हैं, और फॉर्चुनेटली हमें एक छींक भी नहीं आई आज तक। तो ये सिंपल मेजर्स है, एवरीवन हैज टू फॉलो। उलेठी हम डाल सकते, चाय जो बनाते हैं काढ़ा, क्योंकि कई कह रहे थे कि काढ़े से ब्लड ठीक होता है, नहीं होता है। आप अगर जुडिशियसली ले ले, कुछ एकाध चीज भी ले ले जो हमें पसंद है, जो हमें अवेलेबल है, तो आप इससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ सकती है। जो आयुष का काढ़ा एडवाइजरी है उसमें आप मुलेठी डालेंगे तो गर्म नहीं होगी,
जिनको नींद नहीं आती हो मंडूक पर्णी ब्राह्मी ये भी ले सकते हैं और ये रेडीमेड अवेलेबल है मार्केट में। च्यवनप्राश, गिलोय की बट्टी, अणु तेल जो नाक में लगाने के लिए, या हल्दी के ग्रैन्यूल्स है हरिद्रा खंड नाम से, तो इससे आप अपने को बचा सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं इम्यूनिटी के। एंड ऑल दीज आर दी मेजर्स। आप देखिए चाय इतनी अच्छी बढ़िया दिख रही, 5 मिनट में होती। काढ़ा करना कोई मुश्किल काम नहीं। चाय के लिए जितना उबलने के लिए समय लगता है उतने ही समय में आप पानी उबला 1 चम्मच घर का ही दालचीनी या मसाला जो काढ़े का अवेलेबल है वो करा, 2 मिनट उबाला, छान के ले लिया तो ये कलर आ जाता है। उसमें आपने पसंद के अनुसार आप नींबू, गुड़, शहद मिला के ले सकते हैं। किसी को खांसी हो गई तो लौंग की बट्टी, लवंगा की बट्टी या लौंग को भी चूस सकते हैं। So these are the some tips for the healthy diet जो ताजा हो, रस भरा हो, सलाड्स भरपूर ले, उबाल के ले, धो के ले। धोना बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि उस पे भी कोरोना बैठ सकता है, तो आपको धोना बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ धो के ले, क्योंकि जो मोदी जी का स्वच्छता अभियान है, ये एक छोटे से कोरोना ने वो सफल कर दिया, क्योंकि हमें ये सब कुछ फॉलो करना है। अगर हम कोरोना के साथ जीना कैसे, हाउ टू लिव विद कोरोना विदाउट फियर, अगर ये सीख गए तो हम कोरोना से मात कर सकते हैं। और सिंपल पोस्चर, बहुत क्लिष्ट नहीं है कि जो फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, लैटरल बेंडिंग और प्राणायाम इतना भी करे, और ये सैनिटाइजेशन, हैंड हाइजीन करे और आयुर्वेद की इम्यून बूस्टिंग ले, तो हमें कोई डरने की जरूरत नहीं। एक चीज मैं आपको जरूर कहूंगी, जिसको है हर्बल फ्यूमिगेशन, क्योंकि ये कोरोना जैसी महामारी के लिए जनपदोध्वंस व्याधि जैसे जनपद में होता है, तो जो बाह्य पूरा एयर इन्फेक्ट हो गया है, पूरा वायु ही दूषित हो गया, जल ही दूषित हो गया, मान लो देश ही दूषित हो गया, और ये कोरोना अभी वायु दूषित और देश के दूषित से हो गया, तो उसको शुद्ध करने का तरीका आयुर्वेद में है, तो उसको कहते हैं हवन करना। हर कोई, अगर जैसे हम हवन कहते हैं लोबान से, धूप से, घर में हल्दी, सरसों, नीम या हवन की सामग्री जब यज्ञ में होता है, ऐसे छोटा सा हवन पात्र से अगर आप धुआं जलाए, हवन मेडिकेटेड फ्यूम्स अगर करे, तो ये एक बहुत अच्छा कारगर साबित होता है। क्योंकि मान लो बाह्य वातावरण में अगरबत्ती जलाने के बजाय अगर हम कर रहे हैं, ऑल इंडिया में हम रोज हवन करते हैं, कंपैरेटिवली हमारे यहाँ इन्फेक्ट होने का प्रमाण निग्लिजिबल है। 500 में 5 भी पॉजिटिव अभी नहीं आए हैं, सो इट इज अ निग्लिजिबल परसेंटेज। तो ये हवन करना बहुत जरूरी है, और बाह्य हवन करने से अभ्यंतर भी, मन भी शांत हो जाता है, एंड एक स्पिरिचुअल कामनेस, मेंटल हेल्थ भी पीसफुल रहता है और वातावरण की शुद्धि होती है। तो जो जो अभ्यंतर करने से आप हवन भी करिए। कोर्ट के जो कोर्टयार्ड है आपका, वहां हवन शुरू करिए। नीम की पत्ती से हम उसको कैसे करना वो वहां लिखा है, तो इससे भी वातावरण शुद्ध हो जाएगा और बहुत राहत मिलेगी। परसेंटेज वायरल लोड ये कम हो जाता है। और यहाँ हमने एक चार्ट दिया है, ये मैं प्रेजेंटेशन शेयर करूंगी, कौन सी चीजें कितनी बार करनी है, डार्कलिंग कब करना है, गिलोय काढ़ा कितनी बार, जैसे हम चाय लेते हैं सुबह शाम 2 लेते थे, हमने एक ऑल इंडिया में और सभी जगह हम यहाँ चाय के बदले केवल यही देते हैं, हर्बल टी, इट इज वेरी टेस्टी ऑल्सो। आंवला का चूर्ण डाले तो वो एक टैंगी टेस्ट आ जाती है और वो हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है। तो ये अगर सुबह शाम आप दे तो यही एक इलाज हो जाएगा। उसके साथ साथ किसी को बुखार है तो संशमनी वटी, सुदर्शन वटी ये ले ले। अगर किसी को गले में खराश है या कॉमन कोल्ड हो गई, खांसी है, तो आप एक इनहेलेशन तुलसी, पुदीना या अजवाइन से ले सकते हैं। या गले में खराश, क्योंकि हमने ये देखा है दिल्ली में खासकर, क्योंकि थोड़ी सी भी खराश है तो किसी को लगता है मुझे कोरोना हो गया। और मैंने कई पेशेंट यहाँ देखे हैं कंटिन्यूस, बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन, बिकॉज ऑफ मेनी अदर फैक्टर्स ऑल्सो, गले में एक खराश होती है। तो क्यों ना हम रोज गार्गलिंग करें। और ये बिल्वा व्योषादि गुटिका, मतलब क्रिकट, शुंठी, मिरी, पिपली का एक बना हुआ या इलायची से बनी हुई एलादी गुटिका,
या लौंग से बनी लवंगा की गुटिया कुछ ना कुछ चूसते सुबह शाम बोलने से पहले, तो आपका ये गले की खराश भी कम हो जाएगी। ये सिम्टम से लेके असिम्टोमेटिक से मॉडरेट से भी हर किसी का इलाज आयुर्वेद में है। लेकिन जो ठीक हो गए हैं, क्योंकि यहाँ तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, हमारे पास आ जाएंगे तो हम इलाज जरूर करेंगे। लेकिन जो ठीक हो गए हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोरोना चला गया, लॉकडाउन खत्म हो गया, वी हैव टू लिव विद कोरोना, क्योंकि ये फ्लू जैसा हमारे अंदर ही है, ऐसे ही ये वायरस का एक पीक आता है, वो कम होता है, दूसरा भी पीक आ जाता है। तो वी आर इन द मिडिल ऑफ द फर्स्ट पीक। तो ये कम जरूर होगा लेकिन दोबारा आएगा ये। तो हमें हमारे शरीर को जिसको हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को इतना तगड़ा और मजबूत करना है कि दूसरे पीक के लिए हम समर्थ हो जाए, हमें कुछ नहीं होगा। इसीलिए जो ठीक हो गए हैं उनके लिए मुझे खास ये कहना है कि ये आंवला, गिलोय और गोखचूर से बना रसायन चूर्णवटी आज से ही लेना शुरू करें सुबह शाम, कुछ नहीं होगा, इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहेगी। ये मैं दावे के साथ, विश्वास के साथ कहती हूँ। इसीलिए आयुर्वेद का रसायन इम्यूनोमॉड्यूलेशन इज टू इम्प्रूव द innate immunity and also to have the adaptive immunity। और ये तीनों लेवल पे काम करती है, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव और रिहैबिलिटेशन, जिसमें गिलोय, आंवला, नीम, कालमेघ, पुनर्नवा, लहसुन भी ले सकते हैं, और काली मुनक्का, द्राक्षा, अंगूर ये भी आप ले सकते हैं। इसीलिए हम यही कहते हैं, द बेस्ट एंड मोस्ट एफिशिएंट फार्मेसी इज विद इन योर ओन सिस्टम। हमें बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं। और यही ये कोरोना महामारी ने हमें सिखाया है कि फ्यूचर ऑफ द मेडिसिन इज नो मेडिसिन। मेडिसिन है ही नहीं। अगर इतना साइंस आगे गया तो कोरोना के लिए तुरंत मेडिसिन आ जाती। सो द फ्यूचर ऑफ द मेडिसिन इज नो मेडिसिन। आगे आज कोरोना आया, कल और कुछ दूसरा आएगा। तो हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, हमारी फार्मेसी इंटरनल स्ट्रांग है, सेल्फ केयर मेजर से वी कैन बिल्ड अप, एंड दैट इज द मैसेज। और हमने जो अभी जल्द ही में, क्योंकि समय की कमी है, तो जल्द ही हमने जो एक आयु रक्षा की दिल्ली पुलिस के लिए दिया, 3 चीजें हमने दी। एक प्रतिबंधात्मक, एक अंदर गए तो रिप्लिकेट ना हो, और एक रिहैबिलिटेशन के लिए। ऐसे तीनों प्रकार का करके हमने किट बनाया, जिसका नाम आयु रक्षा किट था, जिसमें एक हमने च्यवनप्राश दिया, 1 चम्मच 3 ग्राम लेने के लिए, मधुमेह के लिए एक शुगर फ्री था, और वो गर्मी में भी अगर है तो आप दूध के साथ भी उसको ले सकते हैं, या आंवले का चूर्ण ले सकते हैं। दूसरा था काढ़ा। काढ़ा हमने दिया, ये जो 4 चीजें हैं, आप ये काढ़ा देख सकते हैं, 1 चम्मच, जिसमें है दालचीनी, काली मिर्च, सौंठ, तुलसी और काली मुनक्का, 5 चीजें हैं। गिलोय की एक पट्टी दी, जो इम्यून बूस्टिंग, जो मैंने कहा ना इम्यूनिटी स्ट्रांग रखनी है, ये सुबह शाम लेने के लिए। और ये अणुतेल है, ये नाक में 1-1 2 बूंद लगा के हम सभी आते हैं। और दिल्ली पुलिस वाले भी फीडबैक ये कह रहे कि ये ऑयल इतना सिंपल है, मेरे पॉकेट में भी रह सकता है। कभी भी मुझे डर हो गया कि मेरे आजू बाजू में कोई कोरोना ग्रस्त आ गए, तो चुपके से हमने ये लगा लिया, तो कोई डरने की जरूरत नहीं। और सुबह 1 चम्मच च्यवनप्राश ले लिया, तो मेरी इम्यूनिटी ये तीनों चीजें से स्ट्रांग हो सकती है। और ये काढ़ा कैसे करना है, बहुत सिंपल तरीका है। 1 चम्मच डालिए गर्म पानी में, 1-2 मिनट उबालिए। चाय जितनी भी, देखो ये 4 चीजें हैं, दालचीनी, सौंठ, काली मिर्च, तुलसी। और इसको हमने काढ़े के जैसा, काढ़ा भी बहुत ज्यादा उबालना नहीं, जिनको गर्मी है वो दूध के साथ भी ले सकते हैं। और ये लगाने का तरीका भी सिंपल है। लगाया, एक नथुनों में उसको बंद कर दिया, दूसरे में लगाया, हाथ में भी लगा के आप इसको लगा सकते हैं। और ये गिलोय कैसी है, गिलोय की बटी, तो ये पत्तियां है, कहीं भी चढ़ जाती है, उसका नाम ही अमृता, ना मरने वाली। उसका डंठल लगा दिया, वो पूरी जिंदगी भर आपके घर में रहेगा। उसके पत्ते सूख जाएगा लेकिन वो नहीं सूखेगी। एंड देयर इज अ नेचर सिग्नेचर, वो हमारे शरीर को भी उतना ही तगड़ा मजबूत करती है। कहीं भी काटक, जिसको कहीं भी किसी भी अवस्था में अपने शरीर को वो मरने नहीं देती, इसीलिए लेना चाहिए।
आंवला का रिसर्च ही ये कहता है कि सेल वायबिलिटी ये बढ़ाता है, लिपिड पेरोक्सीडेशन जो फ्री रेडिकल से शरीर में जो टॉक्सिन्स है वो निकाल देता है, इसीलिए एंटीऑक्सीडेंट जो कोरोना की जो थ्योरी है कि वो ऑक्सीजन की कमी करता है, ये ऑक्सीजन देता है, ये लेना चाहिए हमें। आंवला किसी भी फॉर्म में, आपको जिस फॉर्म में सूट करता है उस फॉर्म में ले लीजिए, लेकिन जरूर लीजिए। हम कहते हैं आंवला अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। और ऐसे भी और भी जो मैंने बताई थी, ब्राह्मी, मंडूकपर्णी मेंटल हेल्थ के लिए, जिनको ब्लड प्रेशर अधिक है वो उसकी गोली ले लीजिए। आप शंख पुष्पी जो मेंटल हेल्थ के लिए वो भी आप ले सकते हैं। और यही है, इट इज अ बुके, जैसे कि देर आर मेनी हर्ब्स, हर किसी को हर कुछ लेने की जरूरत नहीं, आप जो अवेलेबल है, गिलोय है, पुनर्नवा जिनको इन्फ्लेमेशन है, सूजन ज्यादा है, जिनको हार्ट की बीमारी, उनको हम देते हैं हरी तकी हर्रे, क्योंकि शरीर में टॉक्सिन्स अगर हो गए, जिनको अगर डर है, तो आप रात को हर्रे ले लीजिए, क्योंकि ये टॉक्सिन्स को फ्लश करता है। जैसे हम सुबह, रोज सुबह अगर जो कुछ भी हमारे बायोलॉजिकल जो वेस्ट है वो शरीर सुबह निकल जाते हैं, ऐसे ही हर्रे अगर ले तो दैट हैज गॉट अ बायो फ्लशिंग, बायो प्यूरिफिकेशन इफेक्ट। तो हर्रे, आंवला और बेबी तक का जो त्रिफला है वो रात को अगर थोड़ा सा लिया तो डरने की जरूरत नहीं, इट हैज गॉट अ प्यूरिफिकेटरी एक्शन, या हफ्ते में एक बार आप जरूर ले सकते हैं। ऐसी कई सारी चीजें हैं हम ले सकते हैं, फिजिकल डिस्टेंसिंग, मेंटल कनेक्टिविटी। लेकिन ये मैं जरूर कहूंगी, जो वर्ड लोग बोलते हैं ना सोशल डिस्टेंसिंग, तो ये जो न्याय देवते के लिए जो सोशल जस्टिस देते हैं सभी को, तो उनको मैं यही कहना चाहूंगी कि कोरोना ने हमें फिजिकली डिस्टेंस जरूर कर दिया, लेकिन पूरे वर्ल्ड को एक प्लेटफॉर्म पे लाया। देखो हम भी आपसे जुड़ गए ओनली बिकॉज ऑफ मेंटल कनेक्टिविटी विथ फिजिकल डिस्टेंस, क्योंकि इन दिनों में हमें एक दूसरे को मेंटली कनेक्ट होना चाहिए, एक दूसरे को सहारा देना चाहिए। एंड दिस इज द की मैसेज, टेक होम मैसेज फॉर टुडे। एंड अवॉइड फियर फैक्टर, क्योंकि ये कुछ नहीं, इंडिया में मॉर्टेलिटी रेट बहुत कम है। आप देखिए जो मर रहे हैं वो 80% 60 अबव है, और जो मर रहे हैं बिलो 50, बिलो 60, वो भी कोमॉर्बिड कंडीशन के, जो कोमॉर्बिड कंडीशन मतलब डायबिटीज, हाइपरटेंशन, उन्होंने बहुत सतर्क रहना है, अपनी इम्यूनिटी को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, और अपनी जो रेगुलर दवा है वो भी लेनी है। साथ में रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर डाइट, हमारी करना क्या है, लाइफस्टाइल में अच्छा बदलाव लाना, हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना इज द की मैसेज to really protect ourselves from this corona pandemic. And really we have faced many bigger challenges in the past, जैसे कि हमने जापानीज फ्लू, कोलोरा, कितने सारे ऐसे पैंडेमिक सिचुएशन में आयुर्वेद की एक ऐसी इंडियन सिस्टम थी, उन्होंने पूरा बाहर लाया। हिस्ट्री ये कहती है कि ब्रिटिश रूलिंग टाइम में भी ब्रिटिशर्स के पास कुछ नहीं था, लेकिन आयुर्वेदिक वैद्यों ने ये महामारी में अपनी कुछ दवा या कुछ ऐसे सुझाव थे इम्यून बूस्टिंग से, ये लेके सभी को बांटा था। ये जो धुआं था, धूम हवन का सामग्री, ये इतने लाखों लोगों के घर घर पहुंचाया था, तभी ये कुछ कंट्रोल में आया था। हमें लगता है कि हमें दोबारा अडॉप्ट करना चाहिए, एंड इट इज आवर मेन स्ट्रीम मेडिसिन। सो लास्टली आई वुड जस्ट से that my immune system is strong and deals with any bacteria, germs and virus. If I decide, I can do it, and my health is my responsibility. Thank you once and again, and I just appeal everyone to take some or the other immune boosting supplements into your day-to-day lifestyle. Thank you for giving this wonderful opportunity. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत ही इंसाइटफुल आपका पूरा ये सेशन रहा है, और हमारे बहुत सारे जो डाउट्स थे जो कि गिरी जी ने भी एक्सप्रेस करे, बिकॉज वी डोंट नो मैनी थिंग्स, सो आज जो आपने हमें बताया है रिगार्डिंग आयुर्वेद की, आयुर्वेद इज ए
साइंस ऑफ एंड हार्मोनियस लाइफ। और ये बहुत आई थिंक जो आपके इनपुट्स हैं वो बहुत कारगर होंगे हमारे जुडिशियल ऑफिसर्स के लिए और हमारे स्टाफ के लिए, क्योंकि भय बहुत है, डर बहुत है कि जब कोर्ट स्टार्ट होंगी, हालांकि मैं ये कहूँ कि अभी भी कोर्ट्स चल रही हैं, 15 जो हमारी जेल्स हैं वहाँ पर मजिस्ट्रेट्स काम कर रहे हैं एवरी डे with their staff. Similarly, in every district, 2 or 3 judicial officers in the sessions, in the ADJ courts, they are working, MMs are working, staff is working. So, धर्मेश जी का लगता है वो चला गया, सिग्नल स्लो हो गए हैं। सर का ऑडियो नहीं आ रहा, माइक्रोफोन इज नॉट वर्किंग, बैंडविड्थ की प्रॉब्लम दिखा रहा है। जी, नहीं मैम आप कुछ कहना चाहिए? डॉक्टर साहब एक दो क्वेश्चंस अगर आपसे पूछते हैं। एक तो ये जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है, ये एलोपैथिक मेडिसिन के साथ ली जा सकती है? ये एक्चुअली आपको इंटरेक्शन से बचना चाहिए, लेकिन इसमें आधा घंटा का गैप आप रख सकते हैं। आयुर्वेदिक मेडिसिन और एलोपैथी मेडिसिन के बीच में कम से कम आधे घंटे का गैप रखना चाहिए। और जो अभी हम आयुर्वेद की जो इम्यून सप्लीमेंट्स कहते हैं, दैट इज एड ऑन, तो आपको उससे डरने की जरूरत नहीं, आप वो ले सकते हैं सुबह शाम, जैसे कि हर्बल टी है, सो इट इज अ सप्लीमेंट, इट इज गिविंग द एड ऑन इफेक्ट। आधा घंटे का गैप रख डॉक्टर साहब जो आईसीएमआर की गाइडलाइन जो प्रोटोकॉल है ट्रीटमेंट का, उसके अंदर क्लियर है कि आपको एलोपैथिक के अलावा डॉक्टर कोई परमिट नहीं करते दूसरी दवाई लेने के लिए। क्योंकि मैंने कोलीग को कोरोना वायरस हुआ था, तो होम्योपैथिक मेडिसिन गवर्नमेंट के होम्योपैथिक मेडिसिन के डॉक्टर से बात की, हमने वहां उनको पहुंचा भी दिया है, ही वाज हॉस्पिटलाइज्ड, बट द डॉक्टर ऑन ड्यूटी रिफ्यूज्ड to take any medicine other than the allopathic which he had prescribed. In that situation, because the patient is in the hospital, he is in complete control of the hospital allopathic doctors. They are not permitting any other medicine to be given to the patient. So, what the ministry is doing in this regard? It's a very relevant question. Ministry has issued the advisory in consensus with ICMR and Ministry of Health and Family Welfare. जो मैंने अभी एडवाइजरी कही, that consists of diet, lifestyle and supplements, immune boosters. तो ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी और ICMR ये भी कह रहे कि इम्यून बूस्टर्स वी कैन टेक along with the medicine, क्योंकि ICMR में भी कहीं स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है नहीं। ICMR भी ये नहीं कह सकता कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ये कोरोना के खिलाफ है, दैट हैज आल्सो एम्पिरिकल एविडेंस। तो जो एलोपैथी हॉस्पिटल में तो ये एक प्रोटोकॉल है, लेकिन मैं आपसे ये शेयर करूं कि दिल्ली में 3 ऐसे हॉस्पिटल हैं, जैसे चौधरी ब्रह्म प्रकाश जो दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर है, दूसरा तिबिया कॉलेज जो दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर है, और ये भी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट। यहाँ 200 मरीज आयुर्वेद की ट्रीटमेंट से हम कर रहे हैं, वो ठीक हो रहे हैं। देयर वी एड ऑन इफेक्ट इज, इट इज द चॉइस ऑफ द पेशेंट विच मेडिसिन ही हैज टू टेक। और दूसरी बात ये है कि वी आर एडहेरिंग टू एंटायर प्रोटोकॉल, जो माइल्ड मॉडरेट सीवियर में जो करना है वो प्रोटोकॉल को अडेयर कर सकते हैं। सो ये क्वेश्चन आयुर्वेद या एलोपैथी का नहीं, यहाँ क्वेश्चन हमें पेशेंट को ठीक करने का है, तो एड ऑन करके हम ये दे सकते हैं। एंड अगेन आई वुड लाइक टू से कि there are 7 lakh Ayurveda practitioners in India. Those are licensed to practice. पहले शुरुआत में ऐसा था कि कहीं टॉल क्लेम करके कोई कुछ भी करता है, लेकिन लाइसेंस आयुर्वेद प्रैक्टिशनर ने
क्या देना चाहिए, इसकी गाइडलाइन मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के वेबसाइट पे क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइन अभी अपलोड हुई है। तो अगर कोई लाइसेंस प्रैक्टिशनर्स ये देता है तो वो हर पेशेंट का हक है कि वो लेके उसको अपने करना है, हर किसी का हक। डॉक्टर साहब आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन सवाल ये है ना पेशेंट उस कंडीशन में ये होता है कि उनके अगर डॉक्टर कहता है अटेंडिंग डॉक्टर कि आप प्रोटोकॉल है तो पेशेंट तो कहता है कि मेरे साथ पता नहीं क्या होगा, वो कहता है कि आयुर्वेदिक की लूंगा और वो अगर उससे रिएक्ट कर गई तो दिस इज एक्चुअली हैपनिंग एंड दिस इज द मैं सही है, दैट इज अ अनफॉर्चुनेट पार्ट कि हमारी सिस्टम की जो स्ट्रेंथ है पूरी दुनिया उसको ले रही है और हमारे यहाँ ही हमारी सिस्टम की स्ट्रेंथ को लोगों तक पहुंचा नहीं जा रहा है। दैट इज ओनली द बिगेस्ट शॉर्टकमिंग दैट वी हैव टू ब्रीच। तो हमने क्या किया है, ये जो इम्यून बूस्टिंग मेजर्स है, जो हेल्थ सेल्फ केयर मेजर है, सो वो एक्टिव मेडिसिन का हम भी दावा नहीं कर रहे, बट टू हेल्प एवरीवन, इवन एलोपैथी हो चाहे कोई भी मेडिसिन आप ले रहे हैं तो एज अ सप्लीमेंट आप जरूर उसको ले लीजिए। आंवला खाने के लिए कोई भी सिस्टम ने मना नहीं किया है, यू हैव टू टेक इट, यू मे टेक इट बिकॉज दैट विल हेल्प टू बूस्ट अप माय इम्यूनिटी। एलोपैथी डॉक्टर ने भी इसको मना नहीं किया। Am I audible, please? Yes. Am I audible now? Sir, yes, sir. Yes, sir. So I'm sorry, मेरी बीच में आवाज चली गई बिकॉज शायद कनेक्टिविटी इशू था। तो मैं सिर्फ इतना ही बताना चाह रहा था कि ये प्रोग्राम का आइडिया अतुल भारद्वाज का था, क्योंकि उनको ये था और हमने भी देखा, गिरी जी ने भी, हमने सबने महसूस किया और इसीलिए एक कमेटी भी बनी है कामनी लाओ जी, पिंकी और सुफीजा जी की, कि हमें ये देखना है कि हम अपने जो स्टाफ मेंबर्स में हैं कैसे इस भय को और डर को दूर कर सके। और भय और डर के अलावा ये भी एक हमने देखा कि कई स्टाफ मेंबर्स इसको, इन चीज़ों को बड़ा कैजुअली ले रहे थे। जो भी सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स हैं या जो अदर गाइडलाइंस हैं, और कईयों के पास आरोग्य सेतु की एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं हुई थी। तो इस संदर्भ में तो खैर हम दूसरे स्टेप्स लेंगे एज ए बीइंग द डिस्ट्रिक्ट जजेस एंड द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। बट मैं ये चाहूंगा कि क्वेश्चंस पहले कुछ स्टाफ की तरफ से आ जाएं, दो चार। अतुल और कमलेश, आपके पास क्वेश्चंस आए हैं, प्लीज आप प्रोसीड करें। पहले कमलेश आप पूछ लें एक दो क्वेश्चंस। नमस्कार मैम। नमस्कार। हेलो हेलो। यू आर ऑडिबल मैम जैसे हाँ मैम, जैसे आपने बताया कि काढ़ा लेना बहुत फायदेमंद है, क्या समर में इतनी गर्मी है काढ़ा लेना फायदेमंद है इतनी गर्मी में? बहुत, हाँ ये बहुत अच्छा सवाल है। ये देखिए काढ़ा आपको अगर जो बाहर जो मिल रहा है काढ़ा, उसमें आयुष मिनिस्ट्री की 4 चीजें, जैसे कि दालचीनी, काली मिर्च, सौंठ। इसमें से काली मिर्च और सौंठ ये गर्म तासीर के है, वो गर्मी कर सकते हैं, लेकिन आप अपना अपना एक खुद काढ़ा बना सकते हो जिसमें घर में दालचीनी है, मुलेठी है, आंवला है, गिलोय है। और जो बाहर काढ़ा मिल रहा है उसमें अगर आपने मुलेठी डाली और काली मुनक्का डाल के आपने उसका प्रमाण कर दिया तो आप ये काढ़ा जरूर लेना, क्योंकि वायरस की जो तासीर है वो कफ प्रधान है, मतलब उसको गर्म चीजों से उसकी एक्टिविटी वीक होती है। तो आप थोड़ा काढ़ा, मतलब जो 1 चम्मच ले लो तो आधा लेके दूध में उबाल के ले सकते हैं, या तो आप उसमें मुलेठी, काली मुनक्का और इलायची डाल के ले सकते हैं, या आंवला और गिलोय डाल के ले सकते हैं, जिससे वो गर्म नहीं होगा। उसमें काली मिर्च और सौंठ ये 2 चीजें गर्म है, उसको आप कम कर सकते हैं। स्टाफ के कई लोग बताते हैं वो काढ़ा ले भी रहे हैं तो छोटे छोटे दाने हो जाते हैं उनको गर्मी में। हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि ये काढ़ा इसका मतलब गर्म हो रहा है, तो ये काढ़ा वो काढ़ा ले ना ले, नहीं लेना चाहिए। उनको नहीं लेना चाहिए। उनको एक दालचीनी, जो मैंने अभी कहा मुलेठी, दालचीनी, ये चीजें से बना हर्बल टी लेना चाहिए। तो काढ़े में ऐसी कौन सी चीजें जिसकी तासीर ठंडी हो और सके हमारा स्टाफ? अगर किसी को गर्म सूट नहीं करना तो कौन सी इसकी तासीर ठंडी होती है? यस, काढ़े में काली मिर्च है, काढ़े में जो काली मिर्च है और
और सोंठ जिसको अदरक कहते हैं, ये 2 चीजें गर्म है। और दालचीनी और तुलसी ये ठंडा भी नहीं, लेकिन वो हर किसी को सूट करेगी। काली मिर्च सूट नहीं करती, और सोंठ उसको थोड़ा आप कम कर दीजिए। उसके बदले आप मुलेठी डालिए और इलायची डालिए, वो ठंडे तासीर की है। आंवला भी ठंडा है, तो ये ले सकते हैं। दिन में कितनी बार ले वैसे, और किस समय हाँ, एडवाइस ज्यादा? ये सुबह आप लें, जैसे आप जितनी बार चाय लेते, सुबह ले, दोपहर में भी ले सकते हैं। कम से कम 2 बार ले आप, सुबह और शाम। और दोपहर की चाय भी अगर ये हर्बल टी ले आप, जैसे हमने भी यहाँ हर्बल टी काढ़े से ही बनी है, चाय के बदले ये चाय में ही डाल के, अगर ये चाय का मसाला समझे, जो आप चाय पी रहे हैं उसमें ये मसाला डालिए, तो आप 3 बार ले सकते हैं 1 गिलास। उससे ज्यादा नहीं लेना चाहिए, नहीं तो गर्म पड़ेगा। जैसे को 102 फीवर है, 103 फीवर है, तो क्या लेना एडवाइजेबल है? बहुत, उनको तो लेना ही चाहिए। जिनको फीवर है उनको तो ये जरूर लेना चाहिए, बल्कि उनको गर्म पानी में तुलसी डाल के वो पानी, गुनगुना पानी लेना चाहिए। और फीवर में जैसे हमारी सुदर्शन घनवटी, जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, या गिलोय की वटी, गिलोय वटी, ये भी साथ साथ लेना चाहिए। जिनको फीवर है इनको काढ़ा थोड़ा थोड़ा बार लेना चाहिए। हम 2 महीने 2.5 महीने सारे प्रिकॉशंस ले रहे हैं, उसके बाद भी दे आर इन्फेक्टेड, तो उनको लगता है कि हमें कुछ हो ही नहीं सकता। वो घर बैठे हैं फिर भी मतलब उनको इन्फेक्शन हो रहा है। और ऐसे में क्या मतलब उनको कोई माइल्ड सिस्टम आए कि स्टाफ को हो या जजेस को हो, तो क्या उनको टेस्ट के लिए जाना चाहिए? उनको श्योर नहीं ये कोविड नहीं हो सकता, ये खाली वायरल ही होगा, क्योंकि वो ऑल प्रिकॉशंस ले रहे हैं जितनी भी सारी हैं घर पे। ये अच्छा सवाल है, क्योंकि कई बार अगर पूरे सावधानी रखते हुए भी अगर किसी को हुआ, लेकिन ये परसिस्ट हुआ, तो जल्द ही अगर आप उसकी आप टेस्ट करें या इम्यूनिटी का टेस्ट करें, तो आप जल्द ठीक हो। बेटर यू टेक अर्ली मेडिसिन, यू आर आउट, जल्दी हो जाएंगे। लेकिन आपको ये जरूर देखना चाहिए कि ये शायद आपने कहीं कमी हुई है, हैंड सैनिटाइजेशन एक्सपोजर के लिए कहीं ना छोड़ा, क्योंकि यहाँ निग्लिजेंस बिल्कुल ही कतई ही नहीं करना है। क्योंकि मास्क पहनना, डिस्टेंस मेंटेन करना, हैंड हाइजीन, इतने कंट्रीज में केवल आइसोलेशन से उन्होंने कोरोना से वो बाहर आए। सोशल फिजिकल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शायद वो नहीं किया होगा इसीलिए हुआ, लेकिन इम्यूनिटी, काढ़ा केवल एक चीज इम्यूनिटी की नहीं है, भोजन करना, लाइफस्टाइल में कहीं है, स्ट्रेस ये भी है। ये सब करते हुए भी अगर किसी को बुखार है, सर्दी खांसी हुई है, तो आप जरूर डॉक्टर की सलाह तुरंत ले लीजिए। और आपको फिर अपने आप दिन वेट करनी चाहिए? फीवर हो रहा है 2-3 दिन 4 दिन, उसके कब एडवाइस 4 दिन वगैरह नहीं करनी चाहिए। फीवर अगर 1 दिन भी हो गया, आप पैरासीटामोल लेके देखिए, ये बाकी सपोर्टिव सिस्टम ले लीजिए। अगर वो दो से ऊपर तुरंत, क्योंकि आपको ना इसके लक्षण पता होने चाहिए कि गले में खराश होनी, गला में खराश, और इसमें छींके नहीं आती, इसमें सूखी खांसी होती है। अगर बदन में दर्द है, थकान ज्यादा है, गले में खराश है, सूखी खांसी है और फीवर ज्यादा आ रहा है, तो आप कहीं भी 1 दिन का भी वेट ना करते हुए तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। फिर आप जल्दी, एक मिनट प्लीज, पैनल स्पीक अपने आप को म्यूट रखें, प्लीज म्यूट रखें, जब क्वेश्चन पूछना हो तभी आप म्यूट करें। इज दैट ओके कमलेश जी? अतुल को कुछ क्वेश्चंस हैं। अतुल सर, एक दो क्वेश्चन म्यूट पे रखिए अपने बेटा। सर, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है बिल्कुल जी। तो सर, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ डॉक्टर साहब का कि आपने हमें इतना ज्ञान दिया इस समय में। कुछ क्वारीज डॉक्टर साहब हमारे पास कुछ स्टाफ से हैं, 1-2 क्वारीज हैं, हालांकि बहुत सारी क्वारीज थी, उनमें से बहुत सारी क्वारीज का आपने बहुत ही अच्छी तरीके से जवाब पहले ही दे दिया है।
तो एक दो क्वारीज हैं जो बच गई हैं, या कहें कि हम उसको थोड़ा सा स्पष्टीकरण और चाहेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं हमारे स्टाफ में जिनको अस्थमा भी है, शुगर भी है, या हाइपरटेंशन है। तो उनका पूछना है कि हमें हमेशा डर लगता है कि हम बाहर, हम घर की बालकनी में भी नहीं जाते हैं इवन डर के मारे, तो हम बाहर कैसे निकलें? हाँ, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि हर कोई, किसी को आज डर है कि मैं घर से बाहर जाऊं, और घर जाऊं तो कोरोना के साथ में तो नहीं ले जा रही। और जो कोमॉर्बिड कंडीशन है, जैसे हाइपरटेंशन है, उनको भी डर है, वो वास्तविक है। लेकिन आप बाहर जाते समय अगर मास्क पहन के जाए और बाहर से आने के बाद आप तुरंत गार्गलिंग करें, हाथ धो ले, तो आपको कुछ नहीं होगा। क्योंकि एक्सपोजर से बचना, आइसोलेट एक्सपोजर से बचना ये जरूर है। आप अगर ये दो तीन चीजों का ध्यान रखें, फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्किंग एंड हैंड हाइजीन, तो आपको कुछ नहीं होगा। तीसरी चीज ये है कि आप अपने हाइपरटेंशन की दवा लेते रहिएगा, आपका डोज मिस मत करिएगा। परहेज जो है, नमक नहीं खाना, स्पाइसी नहीं खाना, उसका थोड़ा ध्यान रखिए। और आयुर्वेद की जो अश्वगंधा है, जो मैंने सप्लीमेंट है, तो रोज रात को आप 2 गोली ले सकते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर भी कम होगा, शुगर भी कम होगा। ऐसे सप्लीमेंट जरूर ले लीजिएगा, लेकिन सावधानी बरतेंगे तो कुछ नहीं होगा। नाक में आप ये जरूर तेल जरूर लगाइए, तो बाहर जाएंगे एक्सपोजर होगा तो भी इतना डरने की कोई जरूरत नहीं। डॉक्टर साहब, ये प्रॉब्लम कभी आप, जैसा आपने बताया नाक में तेल लगाने वाला, बहुत से लोगों को सैनिटाइजर से बड़ी प्रॉब्लम है। ये आंखों में जलन होती है, गले में नहीं सूट करता है, या मास्क लगाते हैं तो गला सूखता है और नाक भी सूख जाता है। तो ऐसे में आयुर्वेद में ऐसा क्या ऑप्ट कर सकते हैं जिससे कि हम डेली यूज करके ऐसी चीजों से बचें? यस, ये अच्छा सवाल है। एक तो मास्क इसलिए हमने कहा कि आप तेल लगाइए, यहाँ ऑयल लगाइए, क्रीम ऑयल लगाइए। गर्मी में भी अंदर ऑयल जाएगा तो बाहर से पसीना नहीं आएगा। और मास्क आप सर्जिकल मास्क के बजाय हैंडमेड कपड़े से बने मास्क, खादी में भी मिल रहा है, कहीं भी मिल रहा है, और वो वॉशेबल है, वो जरूर आप लगाइए। कॉटन का कपड़े से बना हुआ मास्क, वो इन दिनों में फायदेमंद है। क्योंकि ये सर्जिकल मास्क में भी बहुत जल्द, क्योंकि वो हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए ये बहुत जल्दी नमी आ जाती है, सॉगी हो जाता है, 8 घंटे के अंदर इसको फेंक देना है, रीयूज नहीं करना है। लेकिन कपड़े का मास्क है तो वो वॉशेबल है, वो कर सकते हैं। जो हैंड हाइजीन की बात करी कि सैनिटाइजर की, एक तो आप धोइए साबुन से, जहां जरूरत है साबुन से हाथ धोइए, लेकिन जहां जरूरत न धो नहीं सकते वहां हैंड सैनिटाइजर आयुर्वेदिक भी आए हैं, जिसमें अल्कोहल में एलोवेरा, कुमारी, ग्वारपाठा या नीम, मंजीत ऐसा डाल के आयुर्वेदिक सैनिटाइजर भी मार्केट में है, उसको आप यूज कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है डॉक्टर साहब कि हम जब बाहर से घर पे आते हैं, हमारे जो कपड़े हैं, हमारे बाल हैं, और जिनके बाल बहुत बड़े हैं, तो उनको भी एक ये डर रहता है कि हम कोरोना वायरस साथ लेके आ रहे हैं, हाथ धो लिया, सब कुछ धो लिया, लेकिन फिर भी हमें इस बात का डर रहता है कि हमें जो है हम अपने साथ घर में लेके आए। ये एक तो जो ऑफिस में काम करते हैं इन गर्मी के दिनों में, आपको बाहर से अंदर जाते हुए पुराने जमाने जैसे कपड़े चेंज करते थे, तो वो कपड़े पूरे बदल के नहाना बहुत जरूरी है। साबुन से नहाना, सो वॉट एवर इज एक्सपोज पार्ट वो आपको साफ करना ही चाहिए। दैट सेट वी हैव टू बाजू में ही रखना चाहिए, दैट इज कंपल्सरी, मस्ट। अगले 6 महीने हमें ये करना ही चाहिए। ऑफिस से आप जब बाहर जाते हैं तो आपको ये करना ही चाहिए। सेकंडली, जिनके बाल लंबे हैं उनको बाल टाई करके कैप पहनना चाहिए, उसको में कोई झिझकने की जरूरत नहीं। वहां ज्यादा एक्सपोज है, लोगों के समय है, यू जस्ट वेयर अ कैप ऑल्सो। कैप आते हैं 2 रुपए में, 3 रुपए में आते हैं, वो उसको एक्सपोज कर दीजिए। जी, जो सर क्वेश्चन और रह गया है कि लक्षण जो है कोरोना वायरस इफेक्ट के, वो केवल खांसी हो रही है, कभी केवल बुखार हो रहा है, वो बढ़ गए हैं। और जब इस तरह के लक्षण बढ़ गए हैं तो कई बार ऐसा भी है कि बिना लक्षण के भी मरीज निकल के आ रहे हैं। तो ऐसे में कैसा पता लगाएं कि हम जो है इससे पीड़ित हुए?
नहीं, एक तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, हम कहते हैं ना, रोज आप अपने आप को समझिए कि मुझे आज कोरोना से एक्सपोजर हो गया, तो रोज आप घर में जाके नहा सकते हैं, अपने सप्लीमेंट लीजिए, गार्गलिंग करिए, गले में खराश है तो आप गरारे करिए, गरारे करना बहुत जरूरी है, हल्दी नमक का, यौशादी वटी चूसना बहुत जरूरी है, लवंगादी वटी। और ये करने के बावजूद भी अगर कम नहीं हो रहा है तो आप दिखा सकते, टेस्ट अपने आप करने की जरूरत नहीं है, कोरोना की टेस्ट तुरंत अपने आप करने की जरूरत नहीं है, अननेसेसरी डोंट डू। आप एक मैं आपको, आपका खून की जांच में आपके जो व्हाइट सेल्स है अगर वो कम हो गए, ल्यूकोपेनिया कहते हैं उसको, न्यूट्रोफिल अगर बढ़ गए तो बाद में आपको पीसीआर बेस्ड टेस्ट करना चाहिए। सर्दी खांसी जुकाम में आप अडूसा का जो शरबत है जिसको वासकासव कहते हैं वो ले लीजिए, सिंपल चीजें ले लीजिए, मेडिसिन ले लीजिए, उससे कम हो जाएगा। सुदर्शन, मैं आपको एक जो आयु रक्षा किट भी हमने बनाया है, हर किसी को दे रहे हैं, हर किसी को दे रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने भी नॉमिनल इसमें हम चाहे तो आपके कोर्ट में भी एक टेम्पररी 2-3 दिन के लिए वहाँ टेम्पररी काउंटर कर सकते हैं कि वी कैन डिस्ट्रीब्यूट। लेकिन जो आयु 64 नाम की टैबलेट है सुदर्शन घनवटी, रोज सुबह शाम ले लीजिए आप। सुदर्शन घनवटी आयु 64 और संक्रमणवटी अगर रोज ले ले और हल्दी के ग्रैन्यूल्स ले लो तो जिनको सर्दी खांसी जुकाम है, बुखार है, उनको भी आगे ये होगा नहीं 100%। ये हमारा इतने 2 महीने का एक्सपीरियंस है। तो जिनको डर है तो दैट विल गिव देम द कॉन्फिडेंस कि ये नहीं है, और इससे भी नहीं कम हुआ तो आप टेस्ट कर सकते हैं। यस सर। एक मिनट अतुल, आई थिंक जी दिस इज अ गुड आइडिया। ये जो सुदर्शन किट है इसकी हम एक काउंटर टीसीआरई में देख लेते हैं, और डॉक्टर साहब आपसे फिर हम कांटेक्ट कर लेंगे इस बारे में, राइट? हाँ, कामनी, आई थिंक कामनी जी यू हैव सर्टेन ऑफिसर ना, नोडल ऑफिसर को आप नॉमिनेट कर दीजिए, नोडल ऑफिसर से हमारा नोडल ऑफिसर बता देगा एंड विल हैव द काउंटर देयर। हम बता देंगे किसको क्या करना है और हम एडवाइजरी भी दे देंगे, और इम्यून स्टेटस है हमारे पास क्वेश्चनर, तो हम बता के हम एडिशनल भी दे सकते हैं, कुछ सलाह दे सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। कामनी, आई थिंक यू हैव सर्टेन क्वेरीज। Unmute yourself, please. No, there is no query, but there was some problem. But at the end, I must say that it has been a very good session, and a lot of clarification had been sought and has been given also, specifically with related to the heat issues, Kada and the heat that is being generated. So I think that would sort out most of the issues. Dr. Saab, there is a query in the chat box. One of the staff member is apprehensive about water, कि water भी contaminate हो सकता है क्या कोरोना वायरस से, और अगर हम उस पानी में नहा लिए, सब्जियां साफ कर ली, वो अब his concern anxiety is कि मैंने तो हरी सब्जियां खानी ही बंद कर दी हैं इस डर से। नहीं, इतना डरने की, अगर आप सब्जियां खानी बंद करेंगे तो आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी। सब्जी को एक तो बाहर से लाए तो 6 घंटा बाहर रखिए, और गुच्छों पानी में 2-3 पानी में धो लीजिएगा। आजकल तो वो सोडा बाइकार्ब डालिए, जो खाने का सोडा होता है वो डालिए पानी में, और पानी में थोड़ी देर के लिए छोड़िए और धो लीजिए। ऐसा कोरोना वायरस इज अ ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। द न्यू रिसर्च सेज दैट वो सरफेस टू सरफेस ट्रांसमिशन कम है उसका, ये पानी से ट्रांसमिट नहीं होता, ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। मैं अगर बोली और मेरा ड्रॉपलेट उससे किसी पे गया तो वो होता है, और धोने से वो निकल जाता है। इसकी एक अच्छी बात ये है कि ये जो वायरस है, ये मान लो ये सरफेस पे आया और उसको मैंने साफ कर दिया, मतलब सब्जी को अगर वगैरह धो लिया, तो ये कपड़े पे डिटर्जेंट से हाथ, ये डिटर्जेंट से जल्दी निकल जाता है। लेकिन सब्जी में तो डिटर्जेंट नहीं डाल सकते हम, साबुन से नहीं, 200 सोडा बाइकार्ब डालिए
पानी में रखिए और धो लीजिए, कुछ नहीं होगा क्योंकि आप उबालते हैं। कच्चा कुछ चीजें मत खाइए, आप उबाल के खाइए, क्योंकि कोरोना हीट लेवल नहीं है, यानी वो वहां उसकी एक्टिविटी वीक हो जाती है और ये पानी से ट्रांसमिट नहीं होता है। लेकिन हम लोगों को ये सजेस्ट कर रहे हैं पानी में आप कुछ डालिए, जैसे मैं तुलसी के पान पत्ते डाल के जीरा धना डाल के पानी पीती हूँ रोज, या गुनगुना पानी पीती हूँ, बिकॉज दैट गिव्स मी एश्योरेंस कि मैं कोई इन्फेक्शन कैरी नहीं कर रही हूँ। लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं, ये पानी से ट्रांसमिट होने वाला डिसीज नहीं है 100%, ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है और वो भी आप संभाल सकते हैं। इट इज वेरी इजी टू कंट्रोल, हमें बस सावधानी बरतनी है। Ma'am, there is one doubt. One of the judicial officer has posted one query. Do we have ventilator facility at All India Institute of Ayurveda? No, we don't have ventilator, but we have oxygen therapy, but we have been designated as a COVID health center, COVID health center, और हमारा रेफरल हॉस्पिटल से कनेक्शन अच्छा है। लेकिन हमारे यहाँ हमने जो प्रोटोकॉल किया है जिसमें मेडिटेशन, योग, म्यूजिक थेरेपी, हैप्पीनेस थेरेपी, ये सब कुछ है। सो वी आर टेकिंग केयर ऑफ मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ ऑल्सो। डॉक्टर साहब, आप जो गार्गल्स के लिए बात कर रहे हैं जी, ये हल्दी और नमक के साथ ये कितनी बार करने चाहिए और किस किस टाइम? हाँ, ये बहुत अच्छा, गर्म पानी में सुबह और शाम। जैसे सुबह उठते हैं गले में खराश वगैरह तो सुबह करना चाहिए, लेकिन जैसे हम बाहर से घर जाते हैं तो वी आर जस्ट एवरीडे थिंक दैट हम कैरी कर रहे हैं इन्फेक्शन, तो रात को जरूर करना चाहिए सोने से पहले। और वो जो दूध लेना है हल्दी वाला, वो गरारे करने के बाद आप सोने से पहले ले लीजिएगा हल्दी वाला दूध। थैंक यू। आई सी कुछ लोगों के स्टाफ मेंबर्स के चैट बॉक्स में क्वेश्चंस है, मगर ये हमने बोला है कि स्पेशल किट और जो जब हम काउंटर बनाएंगे तो वहाँ पर एड्रेस हो जाएंगे। यस, इंडिविजुअल केसेस तो मैंने बड़े मुश्किल है। एक जैसे एक स्टाफ मेंबर का है कि उसके फादर डायबिटिक है, मदर अस्थमेटिक है, तो क्या क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए? इनके लिए मैं जरूर कहूंगी, ये इस तारीख को मैं एड्रेस जरूर करूंगी, क्योंकि हर किसी के घर में कोई ना कोई एल्डरली एंड वल्नरेबल पॉपुलेशन है। और जो अस्थमेटिक है, डायबिटीज के लिए मैं ये कहूंगी उनके खान पान में आप जरूर ध्यान दीजिएगा, लेकिन खाने का समय भी बहुत इम्पोर्टेंट है। रात के समय में आप उनको कोई भी फल मत दीजिएगा, क्योंकि फल खाने हैं संध्या काल के पहले, मतलब 5-6 बजे से पहले फल खाने, उससे अस्थमा ट्रिगर हो सकता है। एंड द शुगर एट नाइट विल इंक्रीज द ब्लड फास्टिंग एंड बीपी शुगर, तो वो किसी को भी नहीं खाना चाहिए। रात के समय दही मत दीजिएगा, उनका गुनगुना पानी दीजिएगा। और जिनको डायबिटीज है उनके लिए आप हल्दी और आंवला दोनों साथ में दीजिए सुबह शाम, 1 चम्मच हल्दी 1 चम्मच आंवला, क्योंकि महेश जो निशा मलकी का, निशा मतलब हल्दी और आंवला दे दीजिए। और अस्थमा जिनको है उनको आप सोट, मिरी और पिपली का एक त्रिकटू करके मार्केट में आता है, तो वो मध में शहद में डाल के जो कुछ भी आप सुबह चाय दे रहे हैं या गर्म पानी के साथ सुबह शाम उनको दे दीजिए, दैट विल रियली हेल्प। तली हुई चीजें खाने का थोड़ा परहेज रखिएगा, उनको भी कुछ नहीं होगा। आंवला, हल्दी और त्रिकटू साथ में दे दीजिएगा उनको, मतलब। मैम मेरी एक रिक्वेस्ट है जी, आयुर्वेद इतना यूजफुल है, हमारा स्टाफ जजेस कितने हॉस्पिटल में एडमिट हैं, इवन वहाँ पे तो कुछ आयुर्वेद का नाम कुछ भी नहीं है हॉस्पिटल, तो वहाँ की प्रमोशन नहीं होता आयुर्वेद का। जी, एक्चुअली दैट इज अनफॉर्चुनेट पार्ट ना, क्योंकि हम आयुष मिनिस्ट्री से आम आदमी के लिए हर कोई फॉलो करे ये कह रहे हैं। आयुष मिनिस्ट्री गवर्नमेंट की है और Yes. ये भी सब गवर्नमेंट के ही हॉस्पिटल है, तो इतना Yes, ऐसे yes. वहाँ प्रमोशन क्यों नहीं है? ग्राउंड लेवल पे कुछ और है, रियलिटी कुछ और है। हम Yes. सिर्फ बात करते हैं लेकिन वहाँ कुछ होता नहीं है। इवन स्टाफ बताता है गर्म पानी तक पीने को नहीं मिलता, तो क्यों आयुष की क्या मिनिस्ट्री कर रही है आयुष की?
So we are taking this issue up with the health ministry also, and our secretary is also speaking with the secretary. लेकिन what you say, that is our concern also. इसीलिए हमने proactively जो हमारे पास है, हम जो कर सकते हैं उससे हम लोगों के पास खुद जा रहे हैं. बट अगर किसी पेशेंट ने कहा कि मुझे गर्म पानी पी, तो फैसिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट अवेलेबल. दैट इज अनफॉर्चुनेट पार्ट. But we together have to really fight for all these things. Please, ma'am, take care. Thank you so much. Thank you. मैं जस्ट पॉइंट आउट कि आज अनफॉर्चुनेटली शेफाली बनाला टंडन पैनलिस्ट पे ज्वाइन नहीं कर पाई, तो शी वाज सपोज टू एंकर, तो मैं उसकी जगह थोड़ी बहुत एंकरिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ. आई एम नॉट अ प्रोफेशनल वन. इन बिटवीन गिरीश कटवालिया जी का लिंक टूट गया था. आई थिंक गिरीश जी नाउ इज ऑनलाइन, वांट्स टू से समथिंग. गिरीश जी, Giriji, are you there on the? गिरिजी का इज नॉट एस्टेब्लिश्ड, बट उन्होंने मुझे यही बताया है कि हम इसको अतुल को नोडल ऑफिसर बना देंगे और 30 तैयारी कोर्ट प्रीमिसेस में, और बाकी डिस्ट्रिक्ट जजेस से जैसी रिक्वेस्ट आएगी वहाँ पर भी डाइवर्ट कर देंगे. और हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जो है हम लोग एक काउंसलिंग सेंटर और उनका आयुष किट के बारे में जो है सुविधा उपलब्ध करा देंगे. Yes. So any other issue, any other thing that panelists want to? Sukhija, you are there. And Narendra Yadav. I think most of the queries has been, pretty by the ma'am. It's very beautifully done. So I think, sir, आप बताएं बाकी. क्वेरी है डॉक्टर, क्या 2 साल के बच्चों को, छोटे बच्चों को भी च्यवनप्राश दिया जाए? छोटे बच्चे को च्यवनप्राश दे सकते हैं, छोटे बच्चे को, लेकिन उनको एक द्राक्षावलेह बिल्कुल छोटा सा, मतलब चुटकी भर कितना दे सकते हैं 2 साल के बच्चे को. बहुत ज्यादा डाल के देंगे तो गर्म होगा, और घी डाल के दे सकते हैं. च्यवनप्राश में घी डाल के चटाएंगे तो दिक्कत नहीं होगी. मैं एक सवाल यहाँ एड्रेस करना चाहूंगी, जो चैट बॉक्स में मुझे दिख रही है सर. इसमें ये कहा है कि जो कोरोना पॉजिटिव है और उनके साथ लोग रहते पहले कैसे रहे, तो यहाँ घर में भी मास्क पहनना पड़ेगा. जो लोग वहाँ पे है जो कोरोना पॉजिटिव के साथ, क्योंकि आइसोलेशन, अगर रूम अलग है, बाथरूम अलग है, तो उनको आइसोलेट करिए. लेकिन अगर नहीं कर सकते तो वी रियली हैव टू वेयर द मास्क इन द होम आल्सो. Shefali, I think at last she's joining. Yes. Good evening, everyone, and apologies. I don't know, but I was welcome, Shefali. Yeah, I have joined as an attendee long back, but I was not getting into the panelist one. I'm so sorry, and maybe जी sir. कहते हैं ना, ऐसा तो कभी दगा दे जाता है. Exactly. So I was like, a bad day, whatever. But with this informative evening, it has been made good. Thank you so much, Dr. Tanuja, and thanks a lot both the learned district judges for organizing the same. So I have just attended the entire session. I could hear Dr. Tanuja, but I think I was not visible, and in between I was not unmuted myself. The High Court has unmuted me. So sorry for if it was really a very informative session, and we must adhere to the guidelines given by Dr. Tanuja. We should take care of ourselves and our family members. Sirs, with your due permission, I think we should conclude the session. Special thanks to some of the other learned district judges who joined us. Yashwant ji joined us, and I think Dinesh Kumar Sharma ji. Yes, sir. I'm really sorry, but I don't know why I was not surprised that the other learned district session judges are joining. So apologies from my side. All the thanks to all the learned district judges for joining us today. And stay safe, stay healthy. Have a good day ahead. Thank you. Thank you. Thank you, Thank you, Thank you very, very much. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you, everybody.
Thank you, sir. Thank you, ji. It was really a very, very informative session. And Yes. thanks to Girish